Good morning, friends. First of all, wishing you all a very happy Shivratri. I wish that this festival brings that in July 14 you all get your recognition for what you are over here. With this humble note, I would like to begin with today's session. We all are very well aware that we have gathered over here for taking care of the budget amendments, service tax highlights, changes as far as May 14 attempt is concerned. Overall, I'll tell you that budget 2012 was one of the very big budgets as far as service tax was concerned. 2011, 2012, these are the two biggest budgets of service tax. Budget 2011, they have come up with the concept of point of taxation rules, POTR, by changing the system of service tax from cash basis to accrual basis. Budget 2012, the biggest, by replacing the entire positive list into the negative list criteria. यहाँ पे उन्होंने पूरा चेंज करके अब ऐसा कर दिया कि all services in India are taxable except the negative list. So only few services were left out which were in the negative list. These two budgets were brought by none other than Shri Pranab Mukherjee, who is right now the President of India. But once these two major changes were done, in budget 2013, specifically applicable for May 14 attempt, now we don't have much changes to look into. Yesterday, to be very honest, I was again looking at the Finance Act 2013, where I could find that there are a lot of changes as compared to service tax. There are a lot of changes in income tax, there are a lot of changes in central excise, but service tax comparatively was quite less. But nonetheless, it was less, but still we need to learn whatever the changes are. So with this note, probably we will quickly start with the learning of the important tax highlights. एक चीज़ मैं आपको बता दूं, friends, के I will try to focus on the highlights by giving you a clarity as far as the provision is concerned. थोड़ा provision सीखेंगे और उसके बाद जो changes हुए हैं वो हम discuss करेंगे so that it gives you a better clarity. अच्छा, एक और बात, I have given that pamphlets to you all. We have given the pamphlets. उसमें जहाँ पे भी सर्विस टैक्स का पोर्शन है आप बिल्कुल जैसे स्लाइड आता जाएगा वैसे आपको पूरा टॉपिक मिलता जाएगा. What I would recommend is friends के आप जो भी चेंजेस मैं कहता हूँ, जो भी चीज़ें मैं बताता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो आप नोट डाउन करिए. इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू एज योर लास्ट मिनट रेफरेंस. सी अल्टीमेटली अवर गोल शुड बी May 14. After 3 months when we are appearing for our final exams, we should be very clear that we know everything. But for that we need to have our notes very concrete and very proper. So just try to look at that particular notes as well as try to concentrate on the presentation which is in front of you. Chaliye, let us begin with the service tax highlights on budget 2013. Friends, this is a index that what will be the criteria which we are going to look in this particular presentation. Rate, some amendments on negative list, exemptions, other provisions of Finance Act, VCES scheme, a voluntary compliance scheme which has come up, which I'm sure many of you might be aware of, but we will learn its basic provisions. And last, a very important, offences and prosecutions. 3 new sections were introduced, 89, 90 and 91, which we will take up in no time to come. Here we have the first part is rate. Simple. First is no change in the basic rate of service tax. The basic rate is 12%, no change in that. No change in education and higher education cess, that is 2 plus 1, 3%. No surcharge or other taxes are there in service tax. So we have a flat rate of 12.36%. In your exams, mandatorily, statutorily, compulsorily, everybody will calculate the सर्विस टैक्स लायबिलिटी एट द रेट ऑफ 12.36% ओनली. आप ऐसा कर सकते हैं कि 12% तक फाइनल आंसर लेके आओ और उसके बाद आप 3% एडिशनली ऐड करो, चलेगा. बट ट्राई टू ऑलवेज ऐड एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन सेस बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर फॉर गेटिंग द फाइनल आंसर्स. यहाँ पे दे डू कंसिडर एट टाइम्स ऐसे स्टूडेंट्स मिले हैं, सर आंसर तो सही था 12% किया,
तो क्यों मार्क्स नहीं दिए? बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट यू हैव नॉट कैलकुलेटेड द एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन सेस. स्मॉल थिंग्स बट इट डू मेक अ बिग डिफरेंस. स्पेशल रेट ऑफ टैक्स आर ऑल्सो अनऑल्टर्ड. स्पेशल रेट ऑफ टैक्स में आपकी कुछ स्पेशल प्रोविजंस है जो हम लोगों ने रिस्पेक्टिव सीखा था. द स्पेशल प्रोविजंस वेयर ऑन फॉरेक्स डीलर्स, स्पेशल प्रोविजंस वाज ऑन लॉटरी डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट्स, स्पेशल प्रोविजंस वेयर ऑन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एंड एयर ट्रैवल एजेंट्स. ये सब प्रोविजंस थे. उसमें भी कोई वर्चुअल अमेंडमेंट बजट 2013 में नहीं है. देयर आर नो चेंजेस, देयर आर नो अमेंडमेंट्स, नथिंग डूइंग. अबेटमेंट स्कीम. अबेटमेंट हम सब जानते हैं. अबेटमेंट मीन्स टू चार्ज सर्विस टैक्स एट अ लोअर रेट. लेस रेट पे सर्विस टैक्स चार्ज करना, दैट्स योर अबेटमेंट स्कीम. अबेटमेंट स्कीम में उन्होंने 12 सर्विसेज को अब नोटिफाई किया हुआ है. ओनली 12 सर्विसेज आर हैविंग द स्पेशल फीचर ऑफ अबेटमेंट स्कीम. द गुड पार्ट इज दैट प्रोबेबली ऑन ऑल दीज 12 सर्विसेज we don't need to in particularly learn the percentage and the name of the service, क्योंकि अब तक ऐसा देखा गया है कि in abatement scheme they always try to say give you the percentage of abatement. अगर याद रख सकते हो well and good, not no need to worry. Friends, abatement scheme is applicable on all specified services. However, there is a change in serial number 12. Now I would like everybody to completely focus on this particular serial number 12, important topic. According to my opinion, will definitely be asked in May 14. Now, you look at the provision. Construction of a complex building, civil structure or part thereof intended for a sale to a buyer, wholly or partly, except, please underline except where entire consideration is received before the completion of certificate from the competent authority. Friends, in a construction service, as I told you in your respective batches, there are two types of models which are prevailing. One is called a builder model, second is called a developer model. सर्विस टैक्स में आज की तारीख में दो ही प्रकार के से मॉडल्स हैं, एंड दीज टू आर द ब्रॉड मॉडल्स. फिर इंटर्न ट्राईपार्टिएट एग्रीमेंट एंड जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, दीज ऑल आर द सब्सिडरी एंड एंसिलरी पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर मेन मॉडल्स ओनली. मैं आपको दोनों के बारे में बता रहा हूं. पहले मैं आपको डेवलपर मॉडल के बारे में बताऊंगा. ये आपके सामने जो है वो है बिल्डर मॉडल. हम अभी ओरिजिनल प्रोविजन लर्न कर रहे हैं. वी आर नॉट लर्निंग द अमेंडेड प्रोविजन. आई एम जस्ट गिविंग यू अ बैकग्राउंड ऑन द ओरिजिनल प्रोविजन फर्स्ट. डेवलपर मॉडल के लिए बेस्ट एग्जांपल इज वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज. वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज इज फीचर्ड विथ रूल 2A of your valuation rules 2006, where we have two methods, addition method and deduction method. Developer model में what is the criteria? The person is the owner of the land. This is a land on which this school is there. So that land is owned by me. But I know that I am owning this land. But if you ask me to construct a school over here, I am a chartered accountant. I am not a builder. I am not a construction guy. मुझे मालूम नहीं है सर बिल्डिंग कैसे बनाते हैं, उसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होते हैं, क्या क्या डायमेंशंस होते हैं, वो मुझे नहीं मालूम है. तो मैं क्या करता हूं, मेरे पास जमीन है, सो मैं उसमें से किसी एक एक्सपर्ट को जिसे कंस्ट्रक्शन का अच्छा नॉलेज है उसे कॉन्ट्रैक्ट देता हूं, उसे डेवलपमेंट एग्रीमेंट करता हूं कि भैया आप यहां पे स्कूल बनाओ. तो मेरे साथ वो एग्रीमेंट करेगा और वो पूरा स्कूल बनाएगा. नाउ व्हेन ही विल कंस्ट्रक्ट दिस एंटायर स्कूल फ्रेंड्स, ही विल यूज टू थिंग्स, गुड्स एंड सर्विसेज. ये पूरा जो बिल्डिंग बनता है वो खाली मटेरियल से नहीं बनता, ब्रिक्स, सीमेंट, स्टील, सैंड, नो. इट विल ऑल्सो रिक्वायर लेबर, आर्किटेक्ट एंड अदर एंसिलरी सर्विसेज. So there are two components broadly involved. One is goods, one is services. This type of contracts are called works contract, on which whatever is the service portion, on that service tax will be leviable. Goods portion पे VAT लगता है, service portion पे service tax लगता है. Developer model. Developer model, simple. The developer develops the property, develops the building, develops the structure. So where he is developing a structure, he is giving services. And for whatever the services which he is giving, he is required to charge service tax as per the provisions of law. Now, developer model is not the only model which is applicable.
we have one more model, and that is the builder model, which is in front of you. बिल्डर मॉडल में क्या होता है कि यहां पे बिल्डर खुद लैंड ओनर है और खुद उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करता है. जैसे कि सिंपल एग्जांपल, ये लैंड मेरे पास है और मैं जानता हूं कंस्ट्रक्शन कैसे कर सकते हैं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है. आई नो हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग, अ स्कूल, अ स्ट्रक्चर. मैं खुद कंस्ट्रक्शन करता हूं. हम लोग कई बार बिल्डर्स की स्कीम देखते हैं जहां पे लैंड उनके पास है, फिर वो 50 फ्लैट की स्कीम बनाते हैं. वो लोग क्या करते हैं? खुद कंस्ट्रक्शन करते हैं. दैट इज कॉल्ड अ बिल्डर मॉडल. हम किसी को डेवलपमेंट करने के लिए नहीं देते. सर मुझे नहीं आता, सर आप डेवलपमेंट करके दो फिर मैं बेचूंगा. नहीं, हियर आई विल हैव माई ओन लैंड, आई विल डू माई ओन कंस्ट्रक्शन एंड देन आई विल सेल इट ऑफ. एवरीथिंग इज विथ मी. लैंड, मटीरियल, सर्विसेज सब मेरा है. मैं उसमें स्कीम बनाऊंगा, मैं उसमें बेच दूंगा. अब वहां पे जहां पे ये बिल्डर मॉडल है, वहां पे देयर वाज अ स्पेशल अबेटमेंट स्कीम. क्या अबेटमेंट स्कीम था? देयर वाज अ रेशियो ऑफ 3:9. 3% टैक्सेबल, 9% exempted. मतलब if a builder is selling off a immovable property, that is a flat, building, office, showroom, godown, etc., he is required to charge service tax at the rate of 3% with a condition कि वो पैसा उसको मिला हो before getting BU permission. Completion certificate from the competent authority. Competent authority is nothing but your municipal authority. And in absence of municipal authority, an engineer, architect or a licensed surveyor. जहां पे सपोज अहमदाबाद सिटी है तो अहमदाबाद सिटी में वी हैव अ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन. तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से बीयू परमिशन आने के बाद, कंप्लीशन सर्टिफिकेट आने के बाद अगर मैं अपनी प्रॉपर्टी किसी को बेचता हूं तो जी सर्विस टैक्स नहीं लगेगा. लेकिन उसके पहले अगर मैं किसी को बेचता हूं, उसके पहले अगर मैं लोगों से पैसे लेता हूं वो पर्टिकुलर रिमूवेबल प्रॉपर्टी बेचने का, यस इट इज अ सर्विस, इट विल बी सब्जेक्ट टू सर्विस टैक्स. The government said there is an involvement of land, there is an involvement of material, there is an involvement of service. तीन चीजों का इन्वॉल्वमेंट है. बिल्डर मॉडल में तीन चीजों का इन्वॉल्वमेंट है. लैंड भी मेरी, मटीरियल भी मेरा, सर्विसेज भी मेरी. तीनों को इकट्ठा करके मैं बिल्डिंग बनाता हूं. सो व्हेन आई गैदर ऑल द थ्री एंड व्हेन आई कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग, देन देयर इज एन एलिमेंट ऑफ सर्विस इन्वॉल्व्ड. बट वो सर्विस एलिमेंट को इंडिविजुअली कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट जॉब है. बड़े बड़े बिल्डर्स लाइक राहेजास से, लाइक डीएलएफ, ये लोग क्या करते हैं? इन लोगों की 50-50 साइट एक साथ चलती होती है. उनके 50-50 इंजीनियर्स कितनी साइट पे एक साथ घूमते हैं. तो वहां पे इंडिविजुअल सर्विस का कॉस्ट अलोकेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है फ्रेंड्स. सो यहां पे गवर्नमेंट ने एक मैकेनिज्म दिया, अ सिंपल मैकेनिज्म ऑफ 3% एंड 9%. कि भैया अगर 1 करोड़ रुपए का फ्लैट है, सपोज मान लो कि 50 फ्लैट की स्कीम है, हर एक फ्लैट 1 करोड़ का, जिसमें लैंड भी मेरा है, मटीरियल भी मेरा है, लेबर भी मेरा है, तो द रेट ऑफ सर्विस टैक्स विल बी फ्लैट रेट 3%. ऑफ कोर्स इट विल बी एडेड विद एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन. सो 3.09% इज द इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स. तो अगर मैं किसी को फ्लैट बेचता हूं, और अगर उसमें से सब कुछ मेरा है, मैंने किसी को डेवलपमेंट करने के लिए नहीं दिया, डेवलपर मॉडल में नहीं आता हूं, बिल्डर मॉडल में आता हूं, देन आई हैव टू चार्ज सर्विस टैक्स एट द रेट ऑफ 3%, प्रोवाइडेड उसका मुझे कंप्लीशन सर्टिफिकेट ना मिला हो, बीयू परमिशन ना मिला हो, मैंने पैसे बीयू परमिशन मिलने से पहले ले लिए हो. सब कुछ बीयू परमिशन मिलने के बाद होता है, नो सर्विस टैक्स, बिकॉज देन यू आर सेलिंग एन रिमूवेबल प्रॉपर्टी, एंड वेयर यू आर सेलिंग एन रिमूवेबल प्रॉपर्टी, सर्विस टैक्स विल नॉट बी लेवेबल, इट इज आउटसाइड द डेफिनेशन ऑफ सर्विस. बीयू परमिशन मिलने से पहले फ्लैट बेचते हो, ऑफिस बेचते हो, गोडाउन बेचते हो, शोरूम बेचते हो, बंगलो बेचते हो, विला बेचते हो, और सब कुछ आपका है, लैंड, मटीरियल, लेबर, then government has given us a special option which 99% builders of India follows, 3% service tax. Effective rate 3.09%. Now in this particular model there is an amendment. This amendment is very typically written, which we all need to understand. The rate which was 3% and 9% is now changed to 3.6 and 8.4. The abatement which was 75% was reduced to 70%. 70%. Now please concentrate. यहां पे
थोड़ा समझने जैसा है, आपको शायद अपने नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, लिखना पड़ेगा, क्योंकि देयर आर कपल ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग्स विच पीपल टेंड टू इग्नोर, एंड वेयर देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. मैंने खुद ऐसे 5 केसेस देखे हैं. कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी. इफ यू आर हैविंग दैट नोट विथ यू राइट नाउ, प्लीज अंडरलाइन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी. Construction of a residential property having carpet area. Carpet area. What do you mean by carpet area? Carpet area means the area which we can see other than walls. Suppose ये आपका पूरा एरिया है, तो यहां पे ये वॉल्स जो है उसको छोड़ दो, उसके अलावा जो पूरा एरिया है ना, उसे कारपेट एरिया कहते हैं. रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी हैविंग कारपेट एरिया ऑफ 2000 स्क्वायर फीट और मोर, शार्प 2000 स्क्वायर फीट हो या उससे ज्यादा हो. और ये वर्ड और है, लेकिन वहां पे डैश करके लिखो, इट इज एक्चुअली इंटरप्रिटेड एज एंड. देयर इज अ क्लियर कट क्लैरिफिकेशन. इट्स और, बट इट्स इंटरप्रिटेड एज एंड. वेयर द अमाउंट इज चार्ज्ड इज मोर देन 1 crore. नाउ लेट अस फोकस ऑन दैट. Residential unit. Residential unit can be a flat, can be a bungalow, can be a villa, can be anything. जहां पे रेसिडेंशियल यूनिट में आप किसी को अपना रेसिडेंशियल फ्लैट या बंगलो बेचते हो, जहां पे कारपेट एरिया 2000 स्क्वायर फीट से ज्यादा है और जहां पे प्राइस 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, दोनों कंडीशन साथ में फुलफिल होती है, then the person is required to charge service tax at the rate of 3.6% instead of 3%. You need to charge service tax at 3.6%. पहले रेट था 3%. आप कंस्ट्रक्शन करते हो, बिल्डर मॉडल में फॉलो होते हो, डेवलपर मॉडल में नहीं. आप बिल्डर मॉडल में फॉलो होते हो, आप कंस्ट्रक्शन करते हो, लैंड भी आपका है, मटेरियल भी आपका है, बिल्डिंग भी आपका है, लेबर भी आपका है, तो फ्लैट रेट 3% लगाओ. लेकिन अब अगर आप कंस्ट्रक्शन करते हो और उसमें उन्होंने खाली रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात की है, हाई एंड रेसिडेंशियल यूनिट्स, ये उन्होंने वर्ड यूज किया है नोटिफिकेशन में, हाई एंड रेसिडेंशियल यूनिट्स है जहां पे 2000 स्क्वायर फीट से ज्यादा कारपेट एरिया है और अब प्राइस 1 करोड़ से ज्यादा ले रहे हो, उन केस में यू नीड टू चार्ज सर्विस टैक्स एट द रेट ऑफ 3.6% एंड देयर इज एन अबेटमेंट ऑफ 8.4%. बट दिस इज फॉर हाई एंड रेसिडेंशियल फ्लैट्स. नाउ माय सिंपल क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज, friends, where a particular residential flat is having value of more than 1 crore, but it is less than 2000 square feet. ठीक है, 1 करोड़ से ज्यादा वैल्यू है, 1.25 करोड़ का फ्लैट है, लेकिन आपको 1900 स्क्वायर फीट दे रहा है, तो क्या रेट रहेगा? What will be the rate of service tax that will be leviable? What will be the rate? 3%. उल्टा, suppose he is giving you 3000 square feet, but the cost for the same is 80 lakh of rupees, then again the rate will be 3%. It is the two conditions to be satisfied simultaneously. 2000 square feet से कारपेट एरिया ज्यादा और 1 करोड़ से प्राइस ज्यादा, दोनों satisfy हो, then you have required to charge service tax at the rate of 3.6% or otherwise 3%. But the typical part is, यहां पे उन्होंने नेगेटिवली लिखा है. नेगेटिवली कैसे लिखा है, नोटिफिकेशन में कैसे लिखा है समझना. नोटिफिकेशन में ऐसा लिखा है कि जहां पे आपका रेसिडेंशियल यूनिट का, आई वुड लाइक एवरीबॉडी टू कॉन्सेंट्रेट ऑन माय वर्ड्स बिकॉज नाउ यू विल अंडरस्टैंड अ वेरी पेक्युलर थिंग. नोटिफिकेशन में ऐसा लिखा है जहां पे रेसिडेंशियल फ्लैट का कारपेट एरिया 2000 स्क्वायर फीट से कम हो और प्राइस 1 करोड़ से कम हो, इन दैट केसेस you will charge service tax at the rate of 3%. Number 2, for all other cases, you will charge service tax at the rate of 3.6%. अब इसका डेंजरस मीनिंग क्या है, जो इंटरप्रिटेशन काफी सारे लोगों को नहीं पता है, जो मैंने केसेस में देखा हुआ है, वो ये है, इज द कमर्शियल प्रॉपर्टी. कमर्शियल प्रॉपर्टी में आता है आपका ऑफिसेस, आपका गोडाउन्स, आपका शोरूम्स एक्सेट्रा. Now, the dangerous part is, for all other cases, the rate of service tax is 3.6%. Where your residential unit is having less than 2000 square feet carpet area or price is less than 1 crore, or means end.
where the price is less than 1 crore, there you will charge service tax at the rate of 3%. In all other cases, you will charge at 3.6%. मतलब ये हुआ कि अगर मैं किसी को commercial shop बेच रहा हूं, whether it is 2000 square feet or more, whether it is more than 1 crore or not, I am compulsory required to charge service tax at the rate of 3.6%, the biggest. I have to charge service tax mandatorily at the rate of 3.6%. इसीलिए देखो बाजू में 1 करोड़ के बाजू में मैंने लिखा हुआ है commercial property, which is not there in your particular note, so you are required to add up the same. So for commercial property, the rate of service tax will be 3.6% mandatorily. It is only in case of residential units. Residential units can be a flat, a bungalow, a villa. It is only in case of a residential unit where the carpet area is less than 2000 square feet or price is less than 1 crore. Then you will charge service tax at the rate of 3%. Otherwise, in all cases, 3.6%. This is a pretty important thing. अच्छा, एक यहाँ पे एक चीज जो उन्होंने कॉमन रखी है वो ये है, wholly or partly except where the entire consideration is received after the issuance of completion certificate from the competent authority. मतलब क्या? If you sell any property after receiving which permission? BU permission, then definitely there will be no service tax that will be applicable. एक पूरा 50 फ्लैट का स्कीम रेडी है, BU परमिशन भी आ चुका है, एकदम रेडी. I can get the keys immediately. I have to pay money, I'll get the keys. अगर मैं BU परमिशन आने के बाद पूरा ट्रांजैक्शन करता हूं, पूरा ट्रांजैक्शन, then service tax will not be leviable. बट मैंने कोई ट्रांजैक्शन BU परमिशन आने से पहले शुरू कर दिया है तो खत्म, फिर पूरे ट्रांजैक्शन पे सर्विस टैक्स लगेगा. मान लो पूरा फ्लैट रेडी है लेकिन BU परमिशन नहीं आया था, पूरा स्कीम रेडी है और मैंने उसको 5 लाख रुपए एडवांस दिए, 50 लाख का फ्लैट है, मुझे बाकी के 45 लाख रुपए देने बाकी है. इस बीच में BU परमिशन आ जाता है और उसके बाद मैं 45 लाख देता हूं. फ्रेंड्स, फुल अमाउंट विल बी सब्जेक्ट टू सर्विस टैक्स. यहां पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि हमने 5 लाख दिए ना, उसके ऊपर नहीं लगेगा, 45 लाख पे सर्विस टैक्स आएगा. जी नहीं, service tax will be charged on full amount of 50 lakhs because you have started the transaction before getting the completion certificate. The moment you start the transaction before getting the completion certificate, you are required to charge service tax on full value. That's the rule. So, in simple words, let us summarize this particular point and then we will go to the next amendment. Simple. Let us summarize quickly. Broadly, there are two types of model. One is a developer model, second is a builder model. Developer model, the classic case is works contract, जिसमें you will do valuation as per works contract. Works contract valuation rule number 2A for developer model. Developer model में लैंड किसी और का होता है, मैं मटेरियल और सर्विसेज देता हूं, तो सर्विसेज पोर्शन पे मुझे सर्विस टैक्स चार्ज करना है. रूल 2A वैल्यूएशन रूल्स. दूसरा मॉडल है बिल्डर मॉडल, जिसमें लैंड, मटेरियल, लेबर तीनों मेरा, उसके आधार पे मैं एक कंस्ट्रक्शन करता हूं, इमूवेबल प्रॉपर्टी बनाता हूं, स्ट्रक्चर बनाता हूं और वो मैं लोगों को बेचता हूं. BU परमिशन मिलने से पहले अगर मैं वो फ्लैट, ऑफिस, गोडाउन, शोरूम, बंगलो, विला किसी को भी बेच देता हूं, आई हैव टू चार्ज सर्विस टैक्स एट द रेट ऑफ 3%. दिस वाज द प्रोविजन. नाउ इट इज अमेंडेड. अमेंडेड क्या है? If your residential unit, only residential unit is having carpet area of less than 2000 square feet or price of less than 1 crore, then you will charge service tax at the rate of 3%. Otherwise, you will charge service tax at the rate of 3.6%. So even for commercial property, that square feet criteria and 1 crore rupees criteria will not be applicable. For commercial property, you will charge service tax at the rate of 3.6% mandatorily. So this is your first criteria. इसमें एक छोटा सा आपको कैलकुलेशन जो समझना है वो ये है. उस साइड अगर आप देखेंगे ऑन टू द लास्ट टेबल, लास्ट कॉलम, नो बेनिफिट ऑफ सैनवेट क्रेडिट इज अलाउड ऑन इनपुट गुड्स, इनपुट सर्विसेज एंड कैपिटल गुड्स. कई जगह पे प्रैक्टिकली बताऊं तो थोड़ा कंफ्यूजन ये है. एक बिल्डर एसोसिएशन के साथ मेरी बात चल रही थी, उनका मानना यह है कि सर इनपुट गुड्स और कैपिटल गुड्स पे ही क्रेडिट नहीं मिलेगा, इनपुट सर्विसेज पे क्रेडिट मिलेगा. देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन बिकॉज द वर्ड यूज इज नो क्रेडिट इज अलाउड ऑन इनपुट्स, ऐसा लिखा हुआ है. इनपुट्स, आई नो इनपुट्स is being written, but whether it is interpreted as input goods only, why it can't be interpreted as input services? If tomorrow fine buying department comes up with that kind of question, then acha, on a safer side, what we are doing, we are disallowing the entire credit. Disallowing the entire credit matlab we are giving the benefit to the department.
Not in academics, in practical life also. I have conversation with many additional commissioners, a couple of additional commissioners. I have had a word with them. They said, sir, you disallow the credit, otherwise we will do the addition. So no benefit of Sunvet credit is allowed on IG, IS and CG. तीनों पे क्रेडिट कोई नहीं मिलेगा. और सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपका रेट रहेगा 3.6 या 3% रेट रहेगा इफ द वैल्यू ऑफ लैंड इज इंक्लूडेड इन द टोटल अमाउंट. मैंने जैसे आपको बताया, लैंड, मटीरियल, लेबर तीनों होना चाहिए, तो ये रेट एप्लीकेबल रहेगा. इफ नॉट, देन यू विल फॉल अंडर डेवलपर मॉडल. सिंपल है. अगर आप कहते हो सर लैंड किसी का, मैं खाली मटीरियल और सर्विसेज देता हूं, लैंड किसी का, मैं खाली मटीरियल और सर्विसेज देता हूं, तो आप कौन से मॉडल में चले गए? डेवलपर. और अगर लैंड भी आपका, मटीरियल भी आपका और सर्विसेज भी आपकी, तो आप कौन से मॉडल में आ गए? बिल्डर मॉडल में. सिंपल. उसमें अगर 3% और 3.6% डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर. कमर्शियल प्रॉपर्टी है फिक्स 3.6%. रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी विद कारपेट एरिया ऑफ मोर देन 2000 स्क्वायर फीट एंड प्राइस ऑफ मोर देन 1 करोड़ 3.6%. अदर केसेस 3%. सनवेट क्रेडिट नहीं मिलेगा, लैंड का वैल्यू इंक्लूड करना है. ओके. नेगेटिव लिस्ट. नाउ नेगेटिव लिस्ट ऑफ सर्विसेज में 17 सर्विसेज है, विच वी very well discussed. We are known on that particular part. Over here, friends, negative list में एक point number D है. देखिए आपके सामने मैंने लिखा है section 66D का point number D. This is in particularly in relation to agricultural activity of agricultural produce. Agricultural activity को पूरे service tax में से exemption है. There is a full 360-degree exemption on agricultural products. Sir, मैं agricultural product का cultivation करता हूं. I produce crops, fruits, vegetables, pulses, cereals, flowers, etc. Cultivation, harvesting, तोड़ना उसको, drying, grading, sorting, packing, transportation, warehousing, commission agent, everything related to agricultural activity is exempted, friends. कोई ऐसा कहता है कि सर आप एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के कमीशन एजेंट हो? जी सर, मैं बिल्कुल कमीशन एजेंट हूं. मुझे 50,000 किलो गेहूं चाहिए, मैं दिलाऊंगा. पर किलो मुझे आपको 2 रुपया कमीशन देना पड़ेगा, मतलब लाख रुपया कमीशन मुझे मिलना चाहिए. अच्छा, आपको लाख रुपया कमीशन चाहिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को लाने में? यस, आई वांट अ कमीशन ऑफ 2 रुपीज पर केजी. आई वांट 1 लाख रुपीज कमीशन. एग्जम्प्टेड फ्रॉम सर्विस टैक्स. एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के रिलेटेड कोई भी सर्विस दी गई हो, एग्जम्प्टेड. सर ये से देयर आर टोमेटोज ओवर हियर, प्लीज डू ग्रेडिंग. कौन से अच्छे वाले हैं और कौन से ओके वाले हैं, प्लीज डू ग्रेडिंग. सॉर्टिंग करो. बहुत बारिश थी, इसको ड्राइंग करो. कल्टीवेशन करो, हार्वेस्टिंग करो. लेबोरेटरी में जाके टेस्टिंग करवाओ कि ये सीड के अंदर क्या कोई पेस्टिसाइड है, क्या ये ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है. आप कोई भी सर्विस दो ना, service tax related to agricultural activities is totally exempted. Now, let us look at this. Point number D में agricultural activity पूरी exempt है. उसका first point है. There are 6 points in totality, 7 points in fact in totality, जिसमें से first point है जहां पे amendment है. Agricultural operations directly related to, directly, point number 1 में direct की बात की कि agricultural activity से कुछ direct relation हो. Agricultural operations directly related to production of any agricultural produce, including cultivation, harvesting, threshing, plant protection or seed testing. Now, seed testing, यहां देखो, seed word is deleted. seed word उन्होंने delete कर दिया है. पहले जब बजट 2012 में नेगेटिव लिस्ट आया तो उन्होंने ये पॉइंट रखा हुआ था जिसके अंदर सीड टेस्टिंग था. मतलब क्या कि अगर आप टेस्टिंग फ्रूट्स का करते हो वो सीड नहीं है, आप टेस्टिंग वेजिटेबल्स का करते हो वो सीड नहीं है, इट इज टैक्सेबल. इसका इंटरप्रिटेशन ये हुआ क्योंकि टेस्टिंग में स्पेसिफिक लिखा है सीड टेस्टिंग. देन गवर्नमेंट रियलाइज्ड दैट नो, दिस इज रॉन्ग. सीड टेस्टिंग is not the testing which is related to seed only. It can be any testing. Any testing of agricultural products should be exempted. So they have deleted the word seed. देखिए, I give you my interpretation. This will allow the benefit of all other testing in relation to agricultural products such as fruits,
वेजिटेबल्स, एग्स, फ्लावर्स एक्सेट्रा. जो सीड नहीं है उसका भी टेस्टिंग अगर आप लेबोरेटरी में करते हो, जो भी चार्जेस पे करते हो, उसके ऊपर सर्विस टैक्स नहीं आएगा. Budget 2014 and interim budget 2014. There was a big chaos. I'm sure that many of you might not be aware of the fact. Mr. P. Chidambaram has said that storage and warehousing of rice is considered to be a taxable service. Why? Because he was of the view that rice is not an agricultural product. Yes. The Chief Minister of Tamil Nadu, Jayalalitha ji, she has written a detailed letter addressing to the finance minister stating that, sir, this is the basic knowledge. Rice is an agricultural product. And specifically in that, she has written in inverted commas, please thank God that the person to whom you say as chaiwala is not aware about the fact right now. Otherwise, the moment when he will come to know that this is a blunder which is being created by you, you may again create a big consequences of what you are doing. And resulting that, in budget 14, he has exempted that. In budget 14, there are two small amendments in service tax which are virtually of no use. Where one of the amendment is that storage and warehousing of rice is exempted from service tax. It is exempted. It's just by way of a clarification it is being passed. So एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के रिलेटेड कोई भी सर्विस हो फ्रेंड्स, इट इज एग्जम्प्टेड ओनली. और यहां पे जो वर्ड डेंजरस वर्ड था सीड टेस्टिंग, जिसमें उन्होंने ये था कि नहीं खाली सीड का टेस्टिंग करेंगे तो सर्विस टैक्स लगेगा, ये चीज उन्होंने निकाल दी. द वर्ड सीड इज डिलीटेड. ओके, कमिंग टू पॉइंट नंबर एल. नेगेटिव लिस्ट में एक पॉइंट है, पॉइंट नंबर एल, जिसमें उन्होंने लिखा है सर्विसेज बाय वे ऑफ. नंबर 1 देखिए, प्री स्कूल एजुकेशन एंड एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल और इट्स इक्विवेलेंट. 12th स्टैंडर्ड तक कोई भी स्कूल स्टूडेंट्स को सर्विसेज दे, कंप्लीट एग्जम्पशन. प्रकाश स्कूल इज देयर गिविंग सर्विसेज टू इट्स स्टूडेंट्स, फीस लेते हैं. They provide library facilities, they provide education facilities, coaching facilities, food facilities, etc. Completely exempted from service tax. Preschool education, that is pre-primary, say nursery, junior, senior, and up to higher secondary, that is 12th standard, whether it's a government school, private school, public school, international school, koi bhi school ho, complete exemption is there. Education is a part of curriculum for obtaining qualification recognized by law for any time being in force. अगर आप किसी 12th स्टैंडर्ड के बाद ऐसी किसी इंस्टीट्यूट में, ऐसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसे किसी इंस्टीट्यूट में, ऐसे किसी कॉलेज में, ऐसे किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो जो आपको रिकग्नाइज डिग्री देती है, उसका भी एग्जम्पशन है. मैंने रिस्पेक्टिव क्लास में एक एग्जाम्पल दिया था, सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी. सिम्बायोसिस पुणे इज अ यूनिवर्सिटी बाय इटसेल्फ. निर्मा यूनिवर्सिटी इन गुजरात, इन अहमदाबाद, इट्स अ यूनिवर्सिटी बाय इटसेल्फ. अगर आप वहां पे जाके इंजीनियरिंग, एमबीए वगैरह के लिए एडमिशन लेते हो, आपको रिकग्नाइज डिग्री मिलेगी. यू विल गेट अ रिकग्नाइज डिग्री ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट वेयर यू आर टेकिंग कोचिंग, ट्रेनिंग एक्सेट्रा. तो यहां पे उन्होंने ये कहा है कि 12th स्टैंडर्ड तक सब कुछ एग्जम्प्टेड. 12th स्टैंडर्ड के बाद अगर आप किसी ऐसी कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में या यूनिवर्सिटी में जाते हो जो आपको रिकग्नाइज डिग्री देती है, जिसकी डिग्री के आधार पर आप नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हो, अगेन देयर विल बी एन एग्जम्पशन. But if you go to an institute which does not give you a recognized degree, simple example, our institute, Navkar, it does not give you a certificate based on which you will become a chartered accountant. No. So we are not giving you a recognized degree, therefore we are required to charge service tax. Where an institute gives a recognized degree, it is not required to charge service tax. Now, amendment is at point number 3. Education is a part of approved vocational education course. Vocational education course का मतलब part time courses, summer courses. वोकेशनल एजुकेशन कोर्स में ऐसा था कि वोकेशनल एजुकेशन कोर्स अप्रूव्ड बाय एनसीवीटी एंड एनएसडीसी इज एग्जम्प्टेड. नाउ हियर देयर आर कपल ऑफ अमेंडमेंट्स. फर्स्ट, आपको लिखना हो तो लिख दीजिए. वोकेशनल कोर्सेस approved by NCVT
एनसीवीटी के बाजू में लिख दीजिए आप नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, और एनएसडीसी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. Is exempted from service tax. So courses, industrial courses affiliated to NCVT or NSDC is exempted from service tax. This was the provision. Now, what is the amendment? उसके नीचे लिखिए amendment. Courses approved by NCVT and SCVT, State Council of Vocational Training, is exempted, while NSDC is taxable. SCVT, State Council of Vocational Training, is exempted, while NSDC is now taxable. Very important, NSDC is now taxable. So, November 13 तक क्या था? Courses approved by NCVT and NSDC, they were exempted. State Council का हो तो taxable. अब उल्टा है, NCVT, SCVT courses हो तो it is exempted, while NSDC is now made taxable. I would like everybody to look at this. Approved vocational education courses was covering only industrial courses which were approved by National Council of Vocational Training, NCVT. But now it extends to the industrial courses which are approved by SCVT, State Council of Vocational Training. और जो NSDC था वो लिस्ट में से बाहर निकल गया. So, अगर आप एजुकेशन की बात करें तो 3 टाइप के एजुकेशन के एग्जाम्शन है सर्विस टैक्स में से. पहला, अप टू 12th स्टैंडर्ड फुल एग्जाम्शन. 12th के बाद कॉलेजेस में पोस्ट हायर एजुकेशन स्टडीज, आपकी जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की जो डिग्री होती है, उसमें अगर आप ऐसी कोई रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कॉलेज या इंस्टीट्यूट से कोचिंग लेते हो जो आपको डिग्री देती है, रिकग्नाइज्ड डिग्री देती है ऑफिशियली बाय लॉ, then it is exempted, otherwise it is taxable. And if it's a vocational course, part-time course, summer courses approved by NCVT and SCVT, they are exempted. अगर नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की बात करूं तो, और स्टेट स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की बात करूं तो taxable. So now NSDC, SSDC is totally taxable in service tax. Okay. Now, exemption in case of restaurant services. Restaurant services में there was an exemption that आप सर्विस टैक्स तब लगाएंगे अगर वो एक एसी रेस्टोरेंट हो और उसके पास एक लाइसेंस हो टू सर्व अल्कोहल. Mr. P. Chidambaram clearly said, no, according to my view, the second condition is not required. So they have deleted the second condition. License to serve alcohol is not required. Gujarat is the dry state in entire India. So Gujarat was enjoying service tax exemption on restaurant services till 31st March 2013. 1 अप्रैल 2013 ये वो दिन है जिस दिन से सारे रेस्टोरेंट्स पे सर्विस टैक्स आ गया. Restaurants पे service tax is at the rate of 40%, so the effective rate comes to 4.8% plus education, higher education कुल मिला के 4.994 होता है. There are a lot of people in restaurants who are now charging service tax at a flat rate of 4.95%. And our cost has increased proportionately by 50 rupees per 1,000 rupees, that is around 5%. This was a time where a lot of restaurant people has also revised their prices on account of service tax. सिंपल 200 रुपए का वेजिटेबल है 230 कर दिए, जिसमें सर्विस टैक्स भी आ गया और उनका प्रॉफिट मार्जिन भी प्रोपोर्शनली बढ़ गया. क्यों सर प्राइस बढ़ गए? सर्विस टैक्स आ गया. बट अगेन देयर मार्जिन इज ऑल्सो इंक्रीज्ड, दैट वाज इग्नोर्ड. सो नाउ द ब्लेम वाज वेरी गुड पास्ड ऑन टू द गवर्नमेंट, इन विच एवरी पीपल डज. सो देयर इज नो हार्म इन दैट, बट दिस इज अ रियलिटी. सो देयर वाज अ लॉट ऑफ इंक्रीज इन इन्फ्लेशन इन द प्राइसेस the moment when this condition was abolished. In fact, not only Gujarat, but there are many restaurants in India which does not have the license to serve alcohol. The simple restaurants, they all were under service tax ambit. आज की तारीख में ऐसा है कि रेस्टोरेंट्स में अगर आपका एसी रेस्टोरेंट हो तो डेफिनेटली आपको सर्विस टैक्स लगेगा. नाउ
मैं आपको उसका एक प्रोविजन बताता हूं और फिर 2 सीबीएसई के क्लैरिफिकेशंस बताता हूं जो मैंने यहां पे नहीं लिखे हैं, आप लोगों को मैं लिखवाऊंगा। सिंपल है, इट शुड बी अ एसी रेस्टोरेंट एंड द वर्ड यूजेस इन द रेस्टोरेंट और पार्ट ऑफ द रेस्टोरेंट। ये मैंने आपको बताया था, फिर भी एक बार फिर से, इन द रेस्टोरेंट पार्ट ऑफ द रेस्टोरेंट मीन्स इफ द एसी मीन्स एयर कंडीशन, एयर कूलर और एयर हीटर सब आ गया। अगर एसी आपका तीनों में से किसी, मतलब तीनों में से कोई भी, एयर कंडीशन, एयर कूलर या एयर हीटर, तीनों में से कुछ भी अगर आपका रेस्टोरेंट या उसकी प्रीमाइसेस के कहीं भी किसी भी पार्ट में है, आपको पूरी वैल्यू पे सर्विस टैक्स लगेगा। दिस इज अ क्लैरिटी, इट हैज टू बी फॉलोड मैंडेटरली। पूरे रेस्टोरेंट में कहीं पे भी एसी नहीं है लेकिन एमडी की कैबिन में एसी है, जी बिल्कुल सर्विस टैक्स लगेगा। पूरा रेस्टोरेंट है, नो एसी, बट देयर इज अ स्मॉल कैबिन outside the restaurant where the MD is sitting and there is an AC over there, yes, service tax will be leviable. On a strict interpretation, I will say it is leviable. Now, here there are 2 CBEC clarifications which you all should probably note it down. First is, if you are selling MRP based products in a restaurant, there will be no service tax. If a restaurant is selling MRP based products, then service tax will not be leviable. So if you sell a Lay's wafer in a restaurant, then service tax will not be leviable. If you go to Subway and if you ask them, sir, I want to buy this chips also, service tax will not be leviable on that particular product, number 1. Number 2, if there are 2 restaurants, one AC, one non-AC, and food is coming from a central kitchen, then service tax will not be leviable. On non-AC restaurant provided the SSE has maintained separate books of accounts for both AC and non-AC restaurants. समझ में आ रहा है? First is what? If you are selling MRP based products, where you are selling a product which is with MRP in a restaurant, जी उसके ऊपर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा. Second, if you are having 2 restaurants, one AC, one non-AC, and the food is coming from a central kitchen, from a common kitchen, then you are exempted for not charging service tax on non-AC restaurant, provided you are maintaining what? Separate books of accounts. भाई रेस्टोरेंट जो एसी वाला है उसके लिए अलग बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो एसी वाला नहीं है उसके लिए अलग बुक्स ऑफ अकाउंट्स. तो जो एसी वाला नहीं है उसके ऊपर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा. इफ यू ट्राई टू मेंटेन कॉमन बुक्स, देन आई अफ्रेड डिपार्टमेंट मे नॉट गिव यू एग्जम्पशन एंड डेफिनेटली सर्विस टैक्स विल बी लेवेबल. कहीं पे ऐसा लिखा नहीं है, बट ये क्लैरिफिकेशन का इंटरप्रिटेशन तो यही है कि अगर आप इसको सेग्रीगेट नहीं कर सकते हो तो हम सर्विस टैक्स पूरी वैल्यू पे ले सकते हैं. एक छोटा सा डिस्प्यूट जो होने वाला है वो शायद ये होगा कि कई जगह पे मैं ऐसा देखता हूं कि कुछ रेस्टोरेंट्स में एमआरपी बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, बट द प्राइजेस विच आर चार्ज फ्रॉम द कस्टमर आर नॉट द एमआरपी बेस्ड प्राइजेस. जैसे सपोज 20 रुपए का वेफर का पैकेट है लेकिन वो हमसे लेते हैं 50 रुपए. So 30 rupees is the margin which are being taken by them over and above the MRP prices. Now the big question comes is, will that be subject to service tax? Broader interpretation maybe yes, but we don't know. As of now, this is a confusion which is there. जैसे MRP प्रोडक्ट्स पे सर्विस टैक्स लगेगा कि नहीं, वो कंफ्यूजन था सबसे पहले.
फिर सीबीएसई ने क्लैरिफिकेशन दिया, नो इट विल नॉट बी लेवेबल, बट नाउ इज ऑन द एमआरपी प्राइस और ऑन द प्राइस चार्ज फ्रॉम द कस्टमर. ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन इज यस, यू शुड चार्ज सर्विस टैक्स ऑन द डिफरेंस 30 रुपीज. एमआरपी का जो प्राइस है उसके ऊपर नहीं लगाने का. बट इज दैट गोना बी द इंटरप्रिटेशन ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल? वी डोंट नो. पीपल आर नॉट चार्जिंग इट, देन व्हाट टू डू? काफी लोग चार्ज नहीं करते हैं, तो क्या उनको सर्विस टैक्स रिकवर होगा? बिग क्वेश्चन मार्क. नाउ दिस इज योर रेस्टोरेंट सर्विसेज. If it's an AC restaurant, service tax will be leviable in the restaurant or part of the restaurant. And secondly, it will be the clear-cut criteria whether it's an air condition, air cooler or air heater. Okay. Other provisions of Finance Act 1994. दो ऐसे प्रोविजंस थे सेक्शन 77 में, जो पेनल्टी का सेक्शन है, जिसमें पेनल्टी लगता था 200 पर डे और ₹10,000 विच एवर इज हायर. दो प्रोविजंस ऐसे थे. एक क्या? फेलियर टू सप्लाई इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट ऑन अकाउंट ऑफ एनी नोटिस गिवन बाय द डिपार्टमेंट. डिपार्टमेंट ने नोटिस दी है, आपको बोला है कि भैया आपको 27 फरवरी को सुबह 11 बजे डिपार्टमेंट में हाजिर होना है. डिपार्टमेंट की नोटिस है, आपको 27 फरवरी को सुबह 11 बजे बुलाया है, आप हाजिर नहीं होते हो. एंड यू गो ऑन 27 फरवरी 2014 को आपको बुलाया, आप 27 मार्च को जाते हो, एक महीने के बाद. तो गवर्नमेंट के पास राइट है कि नोटिस दिया था, आप नहीं आए, आप एक महीने के बाद आए, तो हम आपके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे अंडर सेक्शन 77, 10,000 और 200 पर डे विच एवर इज हायर. 27 फरवरी से 27 मार्च 30 दिन इंटू 200, सो इट कम्स टू 6,000 और 10,000 विच एवर इज हायर. अच्छा, आप 27 फरवरी के बजाय 27 मई को गए और वो 100 डेज होते हैं, तो 100 into 200 that comes to 20,000 or 10,000. So 20,000 is higher, so 20,000 will be the penalty leviable on you. This is when you fail to give information to the department on account of the notice given by the department. दूसरा penalty ये था 200 per day और 10,000 whichever is higher वाला, failure to obtain registration with the department. हम सबको मालूम है कि 9 लाख से ऊपर टर्नओवर जाता है, सबको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है. So the day when your turnover exceeds 9 lakh, you are required to get yourself registered. Now imagine a situation my turnover is above 9 lakh, but I am not registered with the service tax department. And I get myself registered with a delay of 50 days, or let us say delay of 40 days. So if I get myself registered with a delay of 40 days, what will be the penalty? 40 into 200, that is how much amount, friends? 8,000 or 10,000, whichever is higher. 8,000 or 10,000, whichever is higher, 10,000 is higher. कितने लोगों ने 300 दिन तक रजिस्ट्रेशन नहीं लिया? 300 डेज, तो 300 दिन इंटू 200 रुपया, दैट इज 60,000 और 10,000 whichever is higher, 60,000 is the penalty. But now this provision is categorically amended. Now there is a penalty of ₹10,000 fixed amount. Clear cut, a standard penalty of ₹10,000. Why this is the amount which was being amended? Simple reason. We all are very well aware that government has come up with the concept of VCES scheme, which will be the agenda immediately after this. Voluntary Compliance Encouragement Scheme, amnesty scheme. So government wants to promote more and more people to come to the department and voluntarily pay the taxes. So government said, okay, people will pay the taxes, but provided we don't levy any kind of penalties on them, or if we levy penalties, penalties are of very less amount. So they have amended the provision and now they have reduced it to a standard penalty of ₹10,000, friends. 10,000 ka fixed penalty. So if you are not getting yourself registered, then the penalty will be ₹10,000. This amendment is a prospective amendment, not a retrospective amendment. So it will be for the cases which are after the notification of this budget, after the effect of this budget taken into the place. Now, a very important, a very, very relevant part which you probably have not studied but is now applicable. There is a new section which is being introduced called section 78A. आपको पता हो तो section 78 is a section of penalty. Penalty where you have not levied, not laid, short levied, short paid service tax on account of mala fide intention. 100% से 200% की penalty, recorded, unrecorded, etc.
Now they have come up with a new section called section 78A, which not only seeks the penalty from the SSE but also the officers of the company who are in default. I would like everybody to look at that. और अभी जो मैं बताऊंगा वो आगे आपको offenses prosecutions में, that is section 89 और 90 में भी काम में आएगा. I would like everybody to focus on 4 things very well. पढ़िए. Where a company has committed any of the following contravention. जब किसी कंपनी ने कोई भी फॉलोइंग कॉन्ट्रावेंशन कमिट किया हो. इवेजन ऑफ सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स चार्ज नहीं किया, कलेक्ट नहीं किया, पे नहीं किया. इवेजन. मेरा 90 लाख का टर्नओवर है, मैंने सर्विस टैक्स चार्ज ही नहीं किया. इवेजन. इवेजन ऑफ सर्विस टैक्स. रॉन्गली चार्जिंग सर्विस टैक्स, चार्ज नहीं करना था फिर भी चार्ज किया. रॉन्ग अवेलमेंट ऑफ सैनवेट क्रेडिट, सैनवेट क्रेडिट अवेलेबल नहीं था फिर भी सैनवेट क्रेडिट का बेनिफिट लिया. फेलियर टू पे अमाउंट ऑफ सर्विस टैक्स कलेक्टेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, मैंने चार्ज किया, कलेक्ट किया, लेकिन कलेक्ट किया अपने जेब में रखा. हर एक चीजें डिफरेंट है. पहला जो केस है इवेजन, इवेजन का मतलब चार्ज ही नहीं किया. रॉन्गली चार्ज का मतलब चार्ज करना था 12%, चार्ज किया 16%, या चार्ज करना था 4% और चार्ज किया 8%. रॉन्ग अवेलमेंट ऑफ सैनवेट क्रेडिट, गलत सैनवेट क्रेडिट लिया. या फिर चौथा, फेलियर टू पे सर्विस टैक्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, चार्ज किया, कलेक्ट किया, लेकिन कलेक्ट करके अपनी जेब में पैसा रख दिया. ये तो मेरा पैसा है, गवर्नमेंट का थोड़ी है. गवर्नमेंट वर्क फॉर पब्लिक एंड आई एम पब्लिक, सो पीपल डोंट पे. दैट्स अ कॉन्ट्रावेंशन, दैट्स रॉन्ग. एंड फिफ्थ स्टैंडर्ड, एनी अदर कॉन्ट्रावेंशन. अगर ऐसा होता है then any director, manager, secretary or other officer of such company, talks about only company, not partnership firm, not LLP, etc., who at the time of such contravention was in charge, जो उस वक्त उस contravention के दरमियान चार्ज में था, and was responsible to the company to conduct the business for such company, and knowingly concerned, this is very important, knowingly concerned for such contravention, he shall be liable for a penalty which may extend to 1 lakh of rupees per offense. So if there are 3 offenses proved, if there are 3 contraventions which are proved, then the director, manager, secretary, etc., the person who is in charge of the business at that point of time, if he has knowingly done that contravention, he will be subject to a penalty of 1 lakh rupees per offense, which may extend to lakh of rupees, so they may reduce it accordingly also. ऐसा भी हो सकता है कि पर ऑफेंस 50,000 करे, अगर उतना बड़ा क्वांटम ना बैठे तो. सर्विस टैक्स की डिमांड ही निकलती है 50,000, तो लाख रुपए की पेनल्टी नहीं लगाएंगे, तो सर्विस टैक्स के अमाउंट की पेनल्टी लगाएंगे. सो फ्रेंड्स, वेरी सिंपल, you can charge a penalty up to 1 lakh of rupees for any director who is doing such type of contravention, director, manager, secretary, or any other officer who was in charge. So new section 78A was introduced, which talks about penalties. Next, a very relevant and important part, VCES scheme, जिसके ऊपर कुछ theory questions आने के expectation है for May 14 attempt in particular. VCES scheme is a successful scheme of the government. In the VCES scheme, friends, the government has achieved a gigantic target of collecting 5,500 crore till now. And the expectation of the government is to collect somewhere around 11,000 crores. 11,000 crores is a huge amount which is being earned by the government on account of VCES scheme. You know what was the estimate of the government to earn the service tax revenue for the entire year from the entire country? It was 2 lakh crores. If precisely अगर मैं बोलूँ तो 1,85,000 crore is the total target of the central government from service tax department. कि service tax department में से हमें 1,85,000 crore मिलेगा, जिसमें से VCES scheme की वजह से 11,000 crore is what they have received. And there was a heavy demand from the industries कि please sir extend the scheme to 3 more months. There will be a lot of compliance which will be still done. There, I'll tell you, डिपार्टमेंट के असिस्टेंट डेप्यूटी कमिश्नर्स के साथ बात करने में एक ही ऐसा इंटरप्रिटेशन आया था कि द सर्विस विच हैज़ नॉट पेड सर्विस टैक्स टिल नाउ और विच हैज़ नॉट
cooperated with the VCS scheme was only one service, and that was security services. Security agents जो service tax में आते थे उनकी तरफ से cooperation नहीं है. बाकी the government was expecting somewhere around 300, 400, 500 crore more from this particular category of service from entire India. So there was extension कि भाई इनके साथ बात करेंगे, ये लोग support करेंगे, they will probably definitely give you the money, but just give an extension. But then we know that Lok Sabha elections are coming up and the UPA government has got less time, so extension was not possible. VCS scheme, amnesty scheme, ये scheme इतनी powerful, इतनी अच्छी है कि now the state government are also thinking to come up with such kind of schemes. VAT department में से मुझे अभी पता चला है, information, it may be wrong, it may be correct, I don't know, but they are also planning to come up with such kind of amnesty scheme for VAT also. So let us have an amnesty scheme where people can pay VAT voluntarily and there will be no taxes, there will be no interest and no penalties and no other consequences on them. Scheme क्या है? Let us have the look at that particular scheme. यहाँ पे मैं आपको जितना स्कीम में बताऊंगा उतना बेसिक अगर आपको पता होगा, you may be able to answer all the theory questions. Scheme became effective from 10th May 2013. This is the day when budget 2013 became official. Finance Bill 2013, Finance Act 2013 बना. Person who may give declaration for the tax dues, कौन VCS स्कीम में जा सकता है? वो SSE जा सकता है जिसके अगेंस्ट में कोई शो कॉज नोटिस या जिसके अगेंस्ट में कोई असेसमेंट ऑर्डर ना निकला हो अंडर सेक्शन 72, 73 एंड 73A. आप सबको मालूम है कि सर्विस टैक्स में असेसमेंट 3 सेक्शंस में होता है. 72 which is called best judgment assessment, 73 excess collect 73 show cause notice, that is your recovery of service tax, and 73A excess collection of service tax. अगर आपको इन 3 सेक्शंस के दरमियान 10 मई 2013 से पहले अगर कोई नोटिस इशू हुआ है तो you cannot go to the scheme. If you are having a declaration, मतलब अगर आपको कोई नोटिस इसके बाद इशू हुआ है, yes आप इस स्कीम में जा सकते हो. जिस दिन स्कीम इफेक्टिव हुई उसके पहले आपको नोटिस आ चुका है, शो कॉज नोटिस आ चुका है. शो कॉज, व्हाई वी शुड नॉट टैक्स दिस. असेसमेंट ऑर्डर निकल चुका है, आप अपीलेट लेवल पे हो, फर्स्ट अपील, सेकंड अपील, ट्राइब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट. तो अगर आपका मैटर अभी ऑलरेडी खत्म हो चुका है या शो कॉज इशू हो चुका है, आप ये स्कीम में नहीं जा सकते हो. बट इफ नो नोटिस आर इशूड और नोटिस आर इशूड ओनली आफ्टर 10th May 2013, yes you can go under this scheme. वेरी वेल. तो आपको कोई नोटिस इशू नहीं हुआ होना चाहिए, आपके अगेंस्ट में कोई असेसमेंट ऑर्डर नहीं निकला होना चाहिए 10 मई 2013 के पहले, तो आप इस स्कीम में जा सकते हो. नीचे पढ़िए क्या लिखा है. पर्सन एक्सक्लूडेड, कौन नहीं जा सकता है? एन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन इज इनिशिएटेड एंड ऑडिट हैज बीन इनिशिएटेड. इंक्वायरी मतलब असेसमेंट, इन्वेस्टिगेशन मतलब रेड, एंड ऑडिट मतलब सर्विस टैक्स का ऑडिट. अगर 3 में से कुछ भी इनिशिएट हुआ हो, आप VCS स्कीम में नहीं जा सकते. March 13 में there was a client on whose premises the service tax department has raid, has done the entire raid over there. So now they want to go under the VCS scheme. It was not permissible. उन्होंने से सर्विसेज दी थी जिसके ऊपर सर्विस टैक्स चार्ज ही नहीं किया था. Evasion of service tax was there. They wanted to go under the scheme but they were not allowed because simple reason, the investigation was initiated. The moment investigation was initiated, you cannot go under the scheme. उसके बाद तो सितंबर 2013 में क्लैरिफिकेशन आया कि अच्छा आपके अगेंस्ट में इनिशिएशन अगर इन्वेस्टिगेशन हो चुका है, आपके अगेंस्ट में शो कॉज इशू हो चुका है, आपके अगेंस्ट में असेसमेंट ऑर्डर पास हो चुका है, तो आप उन मुद्दों के लिए नहीं जा सकते हो जिसके अगेंस्ट में शो कॉज इशू हुआ है या जिसके अगेंस्ट में आपको ऑर्डर निकला है. लेकिन उसके अलावा अगर आपकी और कोई इनकम है जिसमें आपको लगता है कि नहीं मुझे यहां पे वॉलंटरी डिस्क्लोजर कर देना चाहिए तो मुझे इंटरेस्ट और पेनल्टी का बेनिफिट मिल जाएगा, यस यू कैन गो अंडर दैट पर्टिकुलर स्कीम. सपोज मान लो कि एसएससी इज गिविंग 2 टाइप्स ऑफ सर्विसेज, बोथ ऑफ देम आर एग्जेम्प्टेड. सर्विस ए, सर्विस बी. सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट ने शो कॉज नोटिस दिया खाली सर्विस ए का कि आपको ये एग्जेम्प्टेड सर्विस नहीं, ये टैक्सेबल सर्विस है भाई, इसके ऊपर सर्विस टैक्स देना है. फाइन. वो नोटिस इशू हो चुका था 10 मई 2013 से पहले और उसके अगेंस्ट में असेसमेंट ऑर्डर निकल चुका है, आप अपील में गए हो. लेकिन कैटेगरी नंबर बी की सर्विस जो है, सर्विस नंबर बी है आपका, जो भी आप एग्जेम्प्टेड मानते हो लेकिन हकीकत में वो भी टैक्सेबल है और उसके ऊपर डिपार्टमेंट अभी तक प्रेस नहीं किया है. अगर आप उसका इम्यूनिटी चाहते हो, उसका रिलीफ चाहते हो, यस यू कैन गो टू द VCS स्कीम एंड द गवर्नमेंट विल गिव यू डेफिनेट बेनिफिट्स ऑन द सेम. स्कीम का ऑपरेशन क्या है देखिए. जिसने भी रजिस्ट्रेशन नहीं लिया पहले जाके रजिस्ट्रेशन ले ले. ऐसे बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स है जो डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर्ड ही नहीं थे.
आप डिपार्टमेंट में जाओ, ST1 दो, सीधा सीधा आपको ST2 मिलेगा. फ्रेंड्स, द डिपार्टमेंट्स अप्रोच वाज सो फ्रेंडली, सो पॉजिटिव. आप ST1 सबमिट करो, सीधा सीधा ST2. यू वांट टू गो टू द VCS स्कीम फॉर विच यू हैव कम? यस सर, टेक ST2. सो सबसे पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन ले लो. रजिस्ट्रेशन लेने के बाद VCS1 करके एक फॉर्म है. ये एक ही फॉर्म है जो आपको देना है, फिर आपका टेंशन खत्म. VCS1 फॉर्म है, 2 पेज का फॉर्म था और उसके पीछे उसका पूरा वर्किंग अटैच करना था आपको. VCS1 फॉर्म जाके सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट को इन्वर्ट करवा दो. सर, मेरा इतना टर्नओवर है, मेरी इतनी लायबिलिटी है, मेरे इतने टैक्स ड्यूज बनते हैं, मैं वॉलंटरी डिक्लेयर करता हूं आपको. उसमें ये मत लिखो कैटेगरी ए सर्विस है, कैटेगरी बी सर्विस है, सर्विस नंबर सी है, सर्विस नंबर डी है, छोड़ दो. सिर्फ लिखो मेरा टर्नओवर इतना है, मेरी लायबिलिटी इतनी बनती है, मेरे को इतना टैक्स देना था, मैंने अभी तक टैक्स नहीं दिया, मैं टैक्स देने के लिए तैयार हूं. जस्ट राइट डाउन दैट. So you have to give the application to the designated authority, that is Superintendent of Service Tax, on or before 31st December 2013 in form number VCS1. 31 दिसंबर 2013 को रात को 10 बजे तक डिपार्टमेंट was working to accept the VCS applications, and there were applications which were given even evening 9 o'clock. So there were people who were, say, getting clarity on the last moments and rushing to the department for making an application before the VCS scheme. जैसे ही VCS स्कीम का आप एप्लीकेशन देते हो, सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट 7 दिन के अंदर आपको VCS2 दे देगा. VCS2 दे देगा. मैंने एक क्लाइंट के केस में, आई रिमेंबर इट वाज 15th of November, मैंने जाके VCS1 दे दिया. सर, आई डिक्लेयर आई हैव टू पे 25 लाख रुपीज सर्विस टैक्स. डिक्लेरेशन कर दिया. से 2.5 करोड़ सर्विसेज, 25 लाख सर्विस टैक्स, एजुकेशन, हायर एजुकेशन, टोटल 25,75,000. मैंने डिक्लेरेशन किया 15 नवंबर को. समझना, 15 नवंबर को डिक्लेरेशन किया. 7 दिन के बाद, इट वॉज 22nd 23rd नवंबर, उन्होंने मुझे VCS2 दे दिया. VCS2 के अंदर उन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई, आपकी स्कीम एक्सेप्ट, मतलब आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो चुका है, हम आपको VCS2 देते हैं, लेकिन अब विद अ कंडीशन कि आप 50% पेमेंट 31 दिसंबर से कर दोगे. जो पीरियड था ना VCS स्कीम का, इट वॉज 1st October 2007. आपको लिखना हो तो लिख दीजिए. इट वॉज 1st October 2007 to 31st December 2012. 5 years and 3 months. 1 अक्टूबर 2007 से 31 दिसंबर 2012. पहले आप VCS1 दो, उसके बाद 7 दिन के अंदर आपको VCS2 मिलेगा. अब 50% पेमेंट, जितना आपने डिक्लेयर किया, मैंने 25 लाख डिक्लेयर किया था, उसका 50% पेमेंट फ्रेंड्स मुझे 31 दिसंबर 2013 से पहले करना है. 31 दिसंबर 2013 ये वो दिन था जिस दिन स्कीम बंद हो गई. ये स्कीम हमेशा के लिए बंद हो गई. तो उसका 50% पेमेंट, मैंने जो अभी आपको 5500 करोड़ कहा ना, ये 5500 करोड़ का पेमेंट 31 दिसंबर 2013 से पहले मिला है. इट्स 50% पेमेंट. रिमेनिंग 50% विल बी पेड ऑन और बिफोर 30th of June. 30 जून को पैसा होगा. तो यहां पे उन्होंने कहा है कि 50% पैसा, 50% ऑफ द मनी शुड बी पेड ऑन और बिफोर 31st of December एंड रिमेनिंग 50% शुड बी पेड ऑन और बिफोर 30th of June. लेकिन अगर 30 जून तक आपके पास पैसे नहीं है तो आप 31 दिसंबर 2014 तक पैसे दे सकते हो. सी, मैंने स्कीम में डिक्लेयर किया 25 लाख, 15 नवंबर को एप्लीकेशन किया, 22 नवंबर को मुझे VCS2 मिला, 31 दिसंबर को मैंने 12.5 लाख रुपए पे कर दिया, 50%. मैं 30 जून को बाकी का 12.5 लाख पे करूंगा. लेकिन बाय चांस मान लो कि मेरे पास पैसे नहीं है 30 जून को, तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, 30 जून को पैसे नहीं ना, कोई टेंशन नहीं, तुम 30 जून के बदले 31 दिसंबर को पैसा दो मुझे. 30 जून 14 को नहीं, 31 दिसंबर 14 को, 6 महीने के बाद. लेकिन फिर मैं तुमसे 6 महीने का क्या लूंगा, इंटरेस्ट. बट दैट इंटरेस्ट विल स्टार्ट फ्रॉम विच डे, 1st of July 2014 to 31st December 2014 or actual date of payment as the case may be. अब ये बैलेंस पे करने के बाद, और उसमें भी फेलियर हुआ तो 31 दिसंबर तक पे करने के बाद सारा वेरिफिकेशन होगा और सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट आपकी डिस्चार्ज करने की लायबिलिटी आपको देगी VCS3 में. फ्रेंड्स प्लीज अंडरस्टैंड, VCS1 एप्लीकेशन SSC देता है डिपार्टमेंट को. वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई या नहीं उसका इंटीमेशन देता है डिपार्टमेंट इन VCS2 कि हाँ भाई आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई. लेकिन आपकी लायबिलिटी डिस्चार्ज हो गई है, वो बनता है VCS3 में. VCS3 is the form which discharges your liability. और एक बार आपके हाथ में VCS3 आ गया ना, no department can challenge on anything, on any amount which is being disclosed by you.
वो पीरियड के लिए फिर कुछ भी नहीं खुलेगा, बात खत्म हो गई। आपने डिक्लेयर कर दिया, अब डिपार्टमेंट आपको उसके ऊपर VCS3 आने के बाद ₹1 का डेटा आपसे नहीं मांगेगा। बट दैट रिसीविंग ऑफ VCS3 इज वेरी इंपॉर्टेंट। VCS2 कोई बड़ी बात नहीं थी, 10-10 मिनट में आ जाते थे, एप्लीकेशन किया सीधा VCS2 हाथ में। It was not a big job. It was an acceptance of that particular application. The biggest job is to get VCS3, where the department will do a lot of verification. Balance sheets मंगवाते हैं, रिटर्न की कॉपी मंगवाते हैं, क्रॉस वेरिफिकेशन करते हैं, और सब कुछ बराबर हो तो VCS3 इशू करते हैं. So we were taking a lot of care at the time when we were making application, क्योंकि डिपार्टमेंट अगर क्रॉस वेरिफिकेशन करता है तो हम कहीं पे गलत हुए तो हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है. Now the worst part is, अगर हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई तो हमने जो भी 50% पैसा पे किया है ना, वो गया. सो गवर्नमेंट विल नॉट गिव दैट मनी बैक, इट्स गॉन. उल्टा आपका ये एप्लीकेशन डिपार्टमेंट में देंगे, रेंज में देंगे, डिवीजन में देंगे, और बोलेंगे देखो इन्होंने इतना डिक्लेयर किया है, हमने इनकी स्कीम रिजेक्ट कर दी है, तुम जाके इनसे रिकवरी करो. सो एट इनिशियल टाइम व्हेन द VCS स्कीम वाज नोटिफाइड, दिस वाज द बिगेस्ट टेंशन इन द माइंड ऑफ द SSC कि सर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई तो. देन गवर्नमेंट केम अप विद अ लॉट ऑफ क्लैरिफिकेशंस कि एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगी, हमारा इंटेंशन खाली रेवेन्यू को कलेक्ट करना नहीं है, आप लोगों को इम्यून भी करना है. एंड देन पीपल हैव गॉट द ट्रस्ट, दे स्टार्टेड क्विकली गेटिंग VCS2. VCS3 भी इशू हो गए. ऐसे कितने सारे SSC है जिनको 25-30 हज़ार 50 हज़ार पे करने दे, सर मैं एक स्ट्रोक पे पूरा 50 हज़ार दे देता हूँ, बात खत्म करो, आपको VCS3 भी मिल जाएगा. VCS3 भी इशू कर दिया है. इनफैक्ट अभी डिपार्टमेंट से कॉल आ रहा है कि 31 मार्च इज कमिंग अप. 31 मार्च मतलब इनका वो रेवेन्यू जनरेट करने का प्रेशर होता है. सर अब पूरा 50% पे कर दो, हम आपको VCS3 इमीडिएटली इशू कर देंगे, विल नॉट डू एनी क्रॉस वेरिफिकेशन. ऐसे कॉल्स आ रहे हैं. सो डिपार्टमेंट इज एग्रेसिव, डिपार्टमेंट इज कीन ऑन रिकवरिंग द मनी, बट डेफिनेटली येस देयर इज अ पॉइंट ऑफ क्रॉस चेक अवेलेबल विद देम. नाउ इम्यूनिटी क्या मिलेगी, एग्जम्पशन क्या मिलेगा? नो इंटरेस्ट, नो पेनल्टीज, नो प्रोसीडिंग्स. कोई प्रकार का इंटरेस्ट नहीं, कोई पेनल्टी नहीं, कोई प्रोसीडिंग नहीं, सब रिलीफ. और VCS3 आने के बाद तो डिपार्टमेंट आपका केस फिर से स्क्रूटनी के लिए भी नहीं ओपन करेगा, मतलब वॉट एवर डिक्लेयर बाय यू इज ट्रू एंड करेक्ट, ऐसा मान लिया जाएगा. अब ये आपका नो रिफंड वाला. अगर बाय चांस आपकी स्कीम में आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है, अगर आपने 50% पे कर दिया है, आपको ₹1 का रिफंड का बेनिफिट नहीं मिलेगा. अगर आपने डिक्लेयर करने के बाद, लास्ट पॉइंट, टैक्सेस ड्यूज डिक्लेयर्ड बट नॉट पेड. मैंने 25 लाख का डिक्लेरेशन किया, 50% 12.5 लाख भर दिया, लेकिन मैं बाकी का 12.5 लाख 30 जून क्या 31 दिसंबर क्या मैं अब तक नहीं दे रहा हूं, 2 साल हो गए उस बात को, मैं अभी गवर्नमेंट को पैसा नहीं दे रहा हूं, तो गवर्नमेंट कैन डू रिकवरी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट मी एज पर सेक्शन 87. अगर आप लोग सेक्शन 87 को रेफर करेंगे तो उसमें गार्निशी प्रोसीडिंग्स, दैट इज दे कैन गो टू योर इमूवेबल प्रॉपर्टी, टू योर मूवेबल प्रॉपर्टी, लोन्स एंड एडवांसेस, गोल्ड, सिल्वर, म्यूचुअल फंड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सबसे पैसा आपका रिकवर करेगी. उतना उनके पास पावर है, दे कैन डू द रिकवरी अगेंस्ट एनीथिंग. नाउ फ्रेंड्स, till now it was a complete patient hearing and it was really nice, but the story does not end over here. मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि now we are coming on to a last part of our discussion. As I told you, budget 13 was not that big budget where there are a lot of amendments, but yes, the amendments were there, and we are on to the last part of amendment, which will be a theory question in May 14 attempt or November 14 attempt. Please concentrate. ये मैं बजट 13 के बाद जितने भी सेमिनार्स में मैं गया था, I went to a couple of seminars to just listen what were the changes in income tax, what were the changes in excise, and of course service tax. One word which came to my ears was that in service tax now there is Danda Raj. यहां पे I would like everybody to kindly concentrate. यहां पे उन्होंने ये कहा कि जो उनका लाठी चार्ज होता है पुलिस वालों का, वही चीज अब सर्विस टैक्स में आ गई है, और उसका कंसिक्वेंसेस इतना बुरा है that now the department officers can put anybody behind the bars. सीधा जेल में डाल सकते हैं. और मैं किसी का नाम नहीं देना चाहता, बट बीच में न्यूज़पेपर्स में भी काफी लोगों का नाम आया था जिन लोगों को डिपार्टमेंट ने जेल में डाल दिया था, और बहुत सारे लोग डिपार्टमेंट के रेडार पे है कि अगर इन लोगों का रेगुलरिटी नहीं मिला तो डेफिनेटली इनसे पैसा नहीं मिला तो हम इनको भी जेल में डाल सकते हैं. दैट इज अ पॉइंट नाउ विच वी आर रिक्वायर्ड टू लर्न एज अ लास्ट पार्ट ऑफ आवर अमेंडमेंट्स.
हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीबडी टू थॉरली कॉन्सेंट्रेट वेल. ये समझना, ये समझ लिया यहां पे, तो फिर आप जब घर जाके इसको रीड करोगे, इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू टू डाइजेस्ट इट एंड टू मेक योर ओन नोट्स. Here there is a procedure, here there is a calculation. Please concentrate onto a very important section 89 and 90, offenses and prosecutions. Friends, offenses. पहले हम section 89 की बात करते हैं, which talks about offenses. There are two types of offenses. One is called category A offense. कैटेगरी ए ऑफेंस में तीन टाइप के ऑफेंस है. आई वुड लाइक एवरीबडी टू लुक एट दैट थ्री टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस. विलफुल इवेजन ऑफ पेमेंट ऑफ सर्विस टैक्स. विलफुल इवेजन का मतलब क्या? चार्ज ही नहीं किया, चार्ज नहीं किया, गवर्नमेंट को विलफुली पे नहीं किया. विलफुली, मालाफाइड इंटेंशंस. 90 लाख का टर्नओवर है, मालूम है सर्विस टैक्स आ जाता है, नहीं करना है, देखा जाएगा. विलफुल इवेजन टू पे सर्विस टैक्स. सेकंड देखिए, रॉन्ग यूटिलाइजेशन ऑफ सैनवेट क्रेडिट. अबेटमेंट स्कीम में हूं, सैनवेट क्रेडिट मिलता नहीं है, फिर भी सैनवेट क्रेडिट लिया. फॉल्स मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स. फॉल्स मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब गलत बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए. टर्नओवर था 2 करोड़, दिखाया 20 लाख. फॉल्स मेंटेनेंस. अगर ये तीन में से कोई भी एक फॉल होता है, इट्स अ कैटेगरी ए ऑफेंस. Friends, there are two category of offense. Category A, category B. Category A offense में ये तीन आते हैं. Willful evasion to pay service tax. I want that we should learn this particular point at this juncture itself. ठीक है? तीन offenses आते हैं जिसको category A कहा जाता है. Willful evasion to pay service tax, wrong utilization of Sanvet credit, and the third one is false maintenance of books of accounts. अगर ये तीन टाइप के offense होते हैं तो आपको क्या प्रोसिक्यूशन किया जा सकता है? देखिए, इसमें दो है. इफ यू लुक एट इट माइन्यूटली, फर्स्ट टाइम एंड सेकेंड टाइम एंड ऑनवर्ड्स. इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम. अगर सबसे पहली बार है तो पहली बार में यह देखा जाएगा कि आपका 50 लाख रुपए से ज्यादा है या 50 लाख रुपए से कम है. मोर देन 50 लाख या लेस देन 50 लाख. द सेम चार्ट इज गिवन टू यू ऑल्सो. तो अगर आप कैटेगरी ए ऑफेंस में आते हो पहली बार, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, 50 लाख से ज्यादा हो, दे कैन गिव यू इम्प्रिजनमेंट फ्रॉम 6 months to 3 years. मिनिमम 6 से मैक्सिमम 3. इट कैन बी 1.5, इट कैन बी 2, इट कैन बी 2.5, इट कैन बी 3. 50 लाख से ज्यादा हो तो 6 महीना से 3 साल. लेकिन लेस देन 50 lakhs हो तो अप टू 1 year. ठीक है? सो दे कैन टेक यू अप टू 3 months, 6 months, 9 months, 12 months. दैट्स इट. पहली बार है, 50 लाख से ज्यादा है, 6 महीना से 3 साल, 50 लाख से कम है 1 साल. लेकिन अगर वही ऑफेंस दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, कितनी भी बार होता है, और अगर आप पकड़े जाते हो तो 50 लाख से ज्यादा हो या कम हो, दे विल गिव यू एन इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 years. 3 years इम्प्रिजनमेंट, सीधा जेल में डाल देंगे. प्रोसिक्यूशन इज यू विल बी पुट बिहाइंड द बार्स फॉर 3 years इफ यू आर कॉट फॉर सेकेंड टाइम एंड ऑनवर्ड्स. नाउ प्लीज कॉन्सेंट्रेट. कैटेगरी बी ऑफेंस. कैटेगरी ए ऑफेंस में कौन से तीन आते हैं? विलफुल इवेजन ऑफ पेमेंट ऑफ सर्विस टैक्स. सेकंड इज रॉन्ग यूटिलाइजेशन ऑफ, एंड थर्ड फॉल्स मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स. कैटेगरी बी ऑफेंस में एक ही आता है, नॉन पेमेंट ऑफ सर्विस टैक्स बियॉन्ड 6 months. नॉन पेमेंट ऑफ सर्विस टैक्स बियॉन्ड 6 months. सर्विस टैक्स आपने लोगों के चार्ज किया, लोगों से कलेक्ट किया, लेकिन 6 महीने से ज्यादा गवर्नमेंट को दिया नहीं. सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या आ रहा था मालूम है? जब ये प्रोविजन नोटिफाई हुआ तब, सर मैंने सर्विस टैक्स चार्ज किया, कलेक्ट किया, और 6 महीने से पहले, बिफोर 6 months मैंने पे कर दिया, तो इट इज रिटर्न बियॉन्ड 6 months, 6 महीने के बाद, तो वो ऑफेंस है. तो पहले 6 महीने से पहले मैंने 5 महीना और 15 दिन के बाद पे कर दिया गवर्नमेंट को, तो वो ऑफेंस नहीं है. देन इट्स नॉट एन ऑफेंस. देन द इंटेंशंस आर नॉट मॉडिफाइड. क्वेश्चन मार्क. वी डोंट नो. No, this is a question which is coming up and it's not being clarified. According to my view, if it is not mentioned, it is not an offense. And then you are required to pay only interest. And if department identifies, maybe penalty. Prosecution नहीं होगा, offense नहीं माना जाएगा. Prosecution का मतलब क्या? They can put you behind the bars. Friends समझो, penalty और prosecution के बीच में difference है. Penalty का मतलब क्या? Penalty का मतलब क्या? They will levy penalty on you.
पेनल्टी में जेल में नहीं डाल सकते, पैसे ही मांगेंगे, पैसे नहीं दिए तो पैसे रिकवर करेंगे. बट वेयर यू आर डूइंग प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन कैन बी पुटिंग यू बिहाइंड द बार्स. अब ध्यान से देखिए, किसी ने सर्विस टैक्स 6 महीने से ज्यादा टाइम फ्रेम के लिए ना दिया हो और वो फर्स्ट टाइम पकड़ा गया हो, फर्स्ट टाइम, जिसमें 50 लाख रुपए से ज्यादा उसने सर्विस टैक्स गवर्नमेंट को नहीं दिया, इट विल बी 6 months टू, कितना लिखा है, चेंज करो, गलत लिखा है, 7 years करो. 6 months to 7 years. लेस देन 50 लाख हो तो देखो अप टू 1 year, सेम. सेकेंड टाइम पकड़े गए 50 लाख से ज्यादा है 7 साल, और 50 लाख से कम है देन टू दैट एक्सटेंड इट इज 3 years. 50 लाख से ज्यादा है 7 साल, 50 लाख से कम है 3 साल, दूसरी बार एंड ऑनवर्ड्स. पहली बार पकड़े गए तो 6 महीना से 7 साल, लेस देन 50 लाख हुआ तो 1 साल. तो सिंपल है, यहां पे फॉर्मूला आपको लर्न कर लेना है. देखो फ्रेंड्स, आई वुड लाइक एवरीबडी टू कंप्लीटली हैव दिस थिंग इन योर माइंड. 2 types ऑफ ऑफेंस, कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी. कैटेगरी ए अगर पहली बार होता है, फर्स्ट टाइम, मोर देन 50 लाख तो 6 and 3, लेस देन 50 1, फिर सेकेंड टाइम एंड ऑनवर्ड्स more than 50, less than 50, standard 3 years. तो can I say 6 3 1 3 3, 6 3 1 3 and 3. लेकिन अगर कैटेगरी बी ऑफेंस है, देन फर्स्ट टाइम हो तो 6 and 7, लेस देन 50 हो तो 1, मोर देन 50 सेकेंड टाइम 7, एंड लेस देन 50 हो तो 3. तो 6 7 1 7 3. This is what you can recollect, or you can make a shortcut of this particular types of offenses. Now what is important? इतना आपको प्रोसिक्यूशन, मतलब इतने टाइम के लिए तो जेल में डाल देंगे, नो प्रॉब्लम. लेकिन सबसे नीचे ये एक मैंने टेबल दिया हुआ है, कैटेगरी बी ऑफेंस इज द मोस्ट डेंजरस ऑफेंस. सर्विस टैक्स लोगों से चार्ज किया, अपनी जेब में रखा, और गवर्नमेंट को 6 महीने से ज्यादा टाइम फ्रेम के लिए नहीं दिया, और वो अमाउंट अगर 50 लाख रुपए से ज्यादा बनता है, वेदर इट इज फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम, प्लीज अंडरस्टैंड माई वर्ड्स केयरफुली. कैटेगरी बी ऑफेंस, लोगों से सर्विस टैक्स लिया, अपनी जेब में रखा, गवर्नमेंट को नहीं दिया, और वो अमाउंट 50 लाख रुपए से ज्यादा बनता है, तो वो ऑफेंस पहली बार हो या दूसरी बार हो, उस ऑफेंस को कॉग्निजेबल ऑफेंस कहेंगे. क्या कहेंगे? कॉग्निजेबल ऑफेंस. इसका मतलब क्या कि आपको कंपलसरी कोर्ट में ले जाया जाएगा और कोर्ट प्रोसीडिंग्स आपके अगेंस्ट में की जाएगी. देयर आर 2 types ऑफ ऑफेंस, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल. नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस इज अ बेलेबल ऑफेंस, जिसमें आपको बेल मिल सकती है, और बेल कौन देगा? डिपार्टमेंट वाला खुद आपको बेल देगा. जिसने आपको अरेस्ट किया है वो आपको बेल देगा. कॉग्निजेबल ऑफेंस इज नॉन बेलेबल. क्यों? क्योंकि उसके लिए कंपलसरी आपको मैजिस्ट्रेट कोर्ट में ले जाया जाएगा. मैजिस्ट्रेट कोर्ट इज योर लोअर कोर्ट. देन लोअर कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में देन यू कैन गो टू द हाई कोर्ट, एंड देन यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट. सो फ्रेंड्स, कैटेगरी बी ऑफेंस मोर देन 50 lakhs. देखिए, कैटेगरी बी ऑफेंस, खाली कैटेगरी बी ऑफेंस मोर देन 50 lakhs, फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम, इट्स कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल. फाइनल सीए की फाइनल एग्जाम्स में May 14 में ऐसा आएगा, गिव द लिस्ट ऑफ ऑफेंस विच आर नॉन कॉग्निजेबल इन नेचर. ऐसा पूछेंगे 3 marks. देन यू नीड टू मेंशन विच आर द ऑफेंसेस. कैटेगरी ए ऑफेंस पूरा नॉन कॉग्निजेबल है. कैटेगरी बी ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है या नहीं? यस, बट वेयर द डिमांड इज लेस देन 50 lakhs, वेदर इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम, उसमें बेल मिल सकती है. और बेल कौन देगा? जिसने आपको अरेस्ट किया. अरेस्ट किसने किया होगा? सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट के किसी सुपरिटेंडेंट ने, असिस्टेंट कमिश्नर ने, डेप्यूटी कमिश्नर ने. वही आपको बेल दे सकता है, ऑफ कोर्स आफ्टर टेकिंग प्रायर परमिशन ऑफ कमिश्नर. लेकिन अगर आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उसको रिकॉर्ड पे लिया जाएगा, कॉग्निजेबल क्राइटेरिया में डाला जाएगा, और आपको कंपलसरी कोर्ट में जाना पड़ेगा, एंड देन द कोर्ट प्रोसीडिंग्स विल स्टार्ट. इट्स जस्ट लाइक पुलिस डिपार्टमेंट वालों का जैसे होता है. कुछ ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट वाले खुद बेल दे देते हैं, कुछ ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें उनको कंपलसरी 24 घंटे में वो पर्टिकुलर केस को मैजिस्ट्रेट कोर्ट में देना पड़ता है. आई थिंक क्वेश्चंस वी कैन टेक इट अप इन द लास्ट, नॉट इन जनरल. फ्रेंड्स, लेट अस फोकस बैक. क्वेश्चंस जो भी होंगे विल टेक इट अप इन द लास्ट. लेट्स जस्ट फोकस ऑन द एस्पेक्ट्स फर्स्ट. क्वेश्चंस विल बी इमीडिएटली आफ्टर वी फिनिश अप विद दिस टॉपिक. सो पुलिस वालों के भी कुछ ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिनमें उनको मैजिस्ट्रेट कोर्ट में ले जाना पड़ता है, उसे कॉग्निजेबल ऑफेंस कहा जाता है. बाकी सारे नॉन कॉग्निजेबल है. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. प्लीज अंडरस्टैंड, दिस आर द very, very, very important points.
ऑफेंसेस और प्रोसिक्यूशन जैसा कोई कंसेप्ट नवंबर 13 तक नहीं था। ऑफेंसेस एंड प्रोसिक्यूशन जैसा कंसेप्ट मई 14 के अटेम्प्ट में पहली बार आया है। ऑफेंसेस दो कैटेगरी के, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी। प्रोसिक्यूशन, यू नो द प्रोसिक्यूशन, द टाइम फ्रेम्स ऑफ द इंप्रिजनमेंट, किसको कॉग्निजेबल कहेंगे, किसको नॉन कॉग्निजेबल कहेंगे, वो भी आपको सिखाया मैंने। अब उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच यू शुड नो, विच इज पर्टेनिंग टू सेक्शन 89 एंड 90। सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट कैन अवॉर्ड लेसर इंप्रिजनमेंट if there are special and adequate reasons which was produced and recorded at the time of judgment। ठीक है, यह समझना नहीं है कि यह पॉइंट में स्पेशल और एडुकेट रीजंस क्या है, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि पॉइंट नंबर 2 इज कनेक्टेड विद पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2 देखिए, केसेस नॉट रिगार्डेड एज, नॉट को अंडरलाइन करिए, केसेस नॉट रिगार्डेड एज स्पेशल एंड एडिक्वेट रीजंस फॉर अवॉर्डिंग लेसर इंप्रिजनमेंट। किन केसेस को स्पेशल केसेस नहीं माना जाएगा? अब कहता हूं सर ये कारण है, ये कारण कोई कारण नहीं है, इसकी वजह से आपको लेसर इंप्रिजनमेंट नहीं मिलेगा। ऐसे कितने कारण है? 3। देखिए, फैक्ट दैट एक्यूज्ड हैज बीन कन्विक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। सर पहली बार, सर दिस इज फर्स्ट टाइम। एक टाइम तो भगवान भी माफ कर देता है, आज शिवरात्रि है सर, नहीं कुछ नहीं। इफ यू से फर्स्ट टाइम, नो, nothing doing, it will not be considered. Number 2, fact that the accused was not the principal offender but merely was acting as an agent or second party। sir मैं तो खाली agent हूं sir, I am a second party, main offender is Reliance, so what can I do sir, I'm merely acting an agent, not acceptable। when you are a culprit, when you have not done the offense, मतलब आप उसके एजेंट हो, लेकिन आपको तो पता होना चाहिए कि सर्विस टैक्स कायदे से गवर्नमेंट को पे करना है। इट्स अ लॉ, देयर इज अ सेल्फ असेसमेंट स्कीम, यू शुड डिक्लेयर इट करेक्टली। नहीं किया, आपकी गलती है, आपको इंप्रिजनमेंट मिलेगी। एज ऑफ द अक्यूज्ड, सर आई एम जस्ट 25 ईयर्स, आई एम जस्ट 30 ईयर्स, 35 ईयर्स, नो, एज इज ऑल्सो नॉट अ बैरियर, इसके वजह से भी लेसर इंप्रिजनमेंट आपको नहीं मिलेगा। केसेज नॉट रिगार्डेड एज अ स्पेशल एंड एडिक्वेट रीजन फॉर अवॉर्डिंग लेसर इंप्रिजनमेंट। तो कौन से एडिक्वेट और स्पेशल रीजंस होंगे? वेयर यू आर एबल टू प्रूव दैट द इंटेंशंस वाज प्योरली बोनाफाइड एंड देयर वाज नो मालाफाइड इंटेंशंस। Where you are able to prove that the intentions was not to hinder the revenue loss to the government, but there was something which was really required because of which this offense has taken place of. So you need to justify with documentary evidences to the department, to the court, that yes, there are no mala-fide intentions. That may be considered as a special and adequate reasons. बाकी अगर आप ये सब बहाने बताओगे तो ये चीजों को वो वैलिड नहीं गिनेंगे। पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड, उसको जेल में डाल दिया जा सकता है फॉर एन ऑफेंस आफ्टर रिसीविंग द प्रायर परमिशन ऑफ चीफ कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साइज। चीफ कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साइज का परमिशन आना कंपलसरी है किसी को भी जेल में डालने से पहले। CCEX का लेटर होना चाहिए, CCEX। नाउ इमेजिन अ सिचुएशन, वी आर on to the concluding part. Imagine a situation, say there is a builder who has done an offense, who has collected service tax not paid to the government up to 1 crore rupees for more than an year now. I repeat, एक बिल्डर है, 1 करोड़ रुपया लोगों से सर्विस टैक्स लेके बैठा है 1 साल से, गवर्नमेंट को नहीं दी है। क्या ये ऑफेंस है? कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी बी। और कैटेगरी बी में लेस देन 50, मोर देन 50 तो कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है? कॉग्निजेबल। अब इसको अरेस्ट करना है, तो अरेस्ट करने से पहले, इसको प्रोसिक्यूट करने से पहले इसकी पेनल्टी आएगी। फर्स्ट ईयर तो 6 महीना से 7 साल, दूसरी बार है तो 7 साल। इसको अरेस्ट करना है तो अरेस्ट करने के लिए सबसे पहले किसका प्रायर परमिशन लेना पड़ेगा? चीफ कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साइज। ओके, चीफ कमिश्नर साहब ने लेटर में दिया, इसको आप अरेस्ट कर सकते हो। अब देखिए सेक्शन 91, 89 एंड 90 इज व्हाट? ऑफेंसेज एंड प्रोसिक्यूशंस। 89 और 90 है ऑफेंसेज और प्रोसिक्यूशंस। 91 इज पावर टू अरेस्ट। कैसे अरेस्ट किया जाएगा, उसका प्रोसीजर क्या है, उसका पावर कितना है, ये सारे पॉइंट सेक्शन 91 में कवर्ड है। सेक्शन 91 क्या कहता है? देखिए, नंबर 1, आफ्टर ऑब्टेनिंग द प्रायर परमिशन ऑफ CCEX, जैसे हमने अभी इसके पिछले पॉइंट में देखा कि CCEX का प्रायर परमिशन लेना पड़ता है, उसके बाद ही किसी को अरेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए ये पूरा प्रोसीजर है, ये आपको पूरी क्लैरिटी देगा। आफ्टर ऑब्टेनिंग द प्रायर परमिशन ऑफ CCEX, उसका परमिशन आने के बाद
कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साइज, कमिश्नर इज बिलो चीफ कमिश्नर, ठीक है, कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साइज विल पास अ जनरल और अ स्पेशल ऑर्डर, जनरल या स्पेशल ऑर्डर पास करेंगे, ऑथोराइजिंग एनी ऑफिसर टू अरेस्ट बिलो द रैंक ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ सर्विस टैक्स. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, कमिश्नर साहब ने परमिशन दी, जाओ जाके उस बिल्डर को पकड़ लो. चीफ कमिश्नर ने जब परमिशन दी, अप्रूवल दी, उसके बाद कमिश्नर एक ऑर्डर पास करेगा, जनरल या स्पेशल डिपेंडिंग अपॉन द केस. कॉग्निजेबल होता है तो स्पेशल होता है, नॉन कॉग्निजेबल है तो जनरल है. ऑर्डर पास करेगा और सुपरिटेंडेंट या उसके ऊपर के लेवल के किसी ऑफिसर को कहेगा, जाओ जाके इस पर्सन को अरेस्ट करके आओ. अरेस्ट कैसे करेंगे? अरेस्ट करने में जैसे पुलिस वाले अरेस्ट करते हैं वैसे अरेस्ट करेंगे. सेम प्रोसीजर, यू नीड टू हैव अ वारंट. वारंट करने के बाद दे विल अरेस्ट, दे विल टेक हिम टू द से डिपार्टमेंट में उसको से रिमांड में रखा जाएगा. सेम प्रोसीजर विल अप्लाई. बट वेयर देयर इज अ डिफरेंस, कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल. नॉन कॉग्निजेबल है तो फिर भी रिलैक्स्ड है. कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ देन प्रोबेबली यू नीड टू पुट हिम बिफोर द कोर्ट इन 24 आवर्स. देखिए, सुपरिटेंडेंट या उसके ऊपर के लेवल का ऑफिसर उसको अरेस्ट कर सकता है. उसके बाद यह पॉइंट आपको मालूम है, वेयर अ पर्सन हैज कमिटेड अ ऑफेंस अंडर कैटेगरी बी for more than 50 lakhs, it is called which offense? While others are non-cognizable. Power to arrest should be only once the offense is proved. चीफ कमिश्नर साहब ऐसे ही सैंक्शन नहीं दे देंगे. कमिश्नर साहब ऐसे जनरल ऑर्डर स्पेशल ऑर्डर पास नहीं करेंगे. पहले ऑफेंस प्रूव होता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, ठोस सबूत है, तो डेफिनेटली आप जाके अरेस्ट कर सकते हो. ठीक है. सो वंस ऑफेंस इज प्रूव्ड, अरेस्ट कैसे होगा? एज पर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स 1973. जैसे पुलिस वाले अरेस्ट करते हैं वैसे ही अरेस्ट होगा. सर्च वारंट होना चाहिए, ही विल बी टेकिंग टू द डिपार्टमेंट या पुलिस स्टेशन में लेके जाएंगे, रिमांड में रखेंगे, एज द केस में बी. इफ द ऑफेंस इज कॉग्निजेबल ऑफेंस, लुक एट दिस, अरेस्ट कर दिया लेकिन ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस है, देन द पर्सन मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द मैजिस्ट्रेट कोर्ट विद इन 24 आवर्स. कोर्ट में उसे 24 घंटे के सामने हाजिर करना और फिर कोर्ट वाले जुडिशियल प्रोसीडिंग्स करेंगे. इन केस इफ इट इज अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, द ऑफिसर इन चार्ज अरेस्टेड कैन ग्रांट, द ऑफिसर इन चार्ज हु हैज अरेस्टेड द पर्सन कैन ग्रांट अ बेल आफ्टर कंप्लाइंग द प्रोविजंस ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स 1973. उसको बेल दिया जा सकता है. गुजराती में हम उसको जामीन कहते हैं. बट दैट when you follow the procedures of Code of Criminal Procedures 1973, ऐसा हो सकता है कि उसका पासपोर्ट ले लिया जाए. ऐसा हो सकता है कि उसको बोल दिया जाए कि every 15 days you have to come to the department and you have to sign a particular sheet. ऐसा भी हो सकता है कि उसको उसके पास से जितना उसने अमाउंट का, जितने क्वांटम का, उतने सर्विस टैक्स का इवेजन किया हो, उसको ये बोला जाए कि भैया आपको उतने रुपए की गारंटी देनी है, बैंक गारंटी देनी है, कॉर्पोरेट गारंटी देनी है. कोई भी उसकी फॉर्मेलिटी, जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स 1973, पुलिस वालों की जो फॉर्मेलिटी होती है, वो फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने के बाद ही उसे बेल दिया जा सकता है. कॉग्निजेबल ऑफेंस में बेल देना हो तो पावर सिर्फ जुडिशियल कोर्ट के पास है. मैजिस्ट्रेट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, दैट्स लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट. सो फ्रेंड्स, दिस इज द एंटायर क्राइटेरिया ऑन ऑफेंसेस एंड प्रोसिक्यूशंस. सिंपल, दो टाइप के ऑफेंस, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी. ऑफेंस कमिट करने पे इंप्रिजनमेंट का पावर है, अब पहले नहीं था, अब इंप्रिजनमेंट कर सकते हैं. उसमें भी उन्होंने ऑफेंस को कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल में डिवाइड कर दिया. नॉन कॉग्निजेबल है तो बेलेबल है, कॉग्निजेबल है तो नॉन बेलेबल है. और उसके बाद उसकी पूरी प्रोसीजर बताई कि कैसे हो सकता है. चीफ कमिश्नर का पहले परमिशन लो, कमिश्नर साहब ऑर्डर पास करे, फिर वो किसी को भी भेज के अरेस्ट करवा सकते हैं. नॉन कॉग्निजेबल होगा, बेल मिल जाएगा, प्रोवाइडेड यू फॉलो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स 1973. नहीं है तो सीधा कोर्ट में जाना पड़ेगा, वहां पे कोर्ट की प्रोसीडिंग्स फॉलो करने के बाद आपको बेल मिलेगा. एज सिंपल एज दैट. फ्रॉम आवर एग्जाम पर्सपेक्टिव, this much theory which is mentioned in section 89, 90 and 91 is more than enough, is more than sufficient. They will not ask what is the code of criminal procedures 1973. Don't worry, because that is beyond our scope. Because when our module itself says it's code of criminal procedures 1973, we have to write down that much only. Even आपको पता हो तो high court, supreme court में it is code of criminal procedures 1908. You need to follow that. So friends, this is the criteria, and I think we are now through with our all the major changes of budget 2013. Friends, मैं आपको एक बात बताऊं before I end up with my discussion or before I take up some queries and questions.
A small thing which I would like to just quickly point it out without wasting much time. एक छोटा सा incident I would like to share with you. There was a student who came to me. I was having an IPCC amendment lecture and I have given the break in between. तो मैं नीचे बैठा था नौकार हाउस 1 पे. एक स्टूडेंट आया. He was a final CA student. Appeared in November 13. Maybe appeared for second time or third time. I don't know. And has failed. So he came and said, "Sir, मुझे यहाँ पे एग्जाम्स लिखनी है तो एग्जाम्स के फॉर्म्स वगैरह कहाँ से मिलेंगे, मतलब किसको मिलेगा?" मैंने कहा, "क्यों एग्जाम लिखनी है? पहली बार एग्जाम दे रहे हो?" "नहीं सर, दिस इज माई सेकेंड और थर्ड अटेम्प्ट." दिस इज व्हाट ही सेड. आई डोंट रिमेंबर इट एग्जैक्टली. आई सेड, "Why you failed?" मतलब I could remember that yes, he was a student, he has studied, he was very sincere. I asked him that why did you fail? So he said to me very bluntly and very clearly, and he was very clear. He was not able to face what I was saying, but said, "Sir, my failure, the major reason for my failure is your Facebook and WhatsApp. I used to always be on the phone, passing on the messages, making statuses, this, that, blah, 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 blah." What I believe is that ही वॉज ऑफ द ओपिनियन के सर मैंने अगर वो टाइम पे अगर इतना फोकस नहीं है, उसने पूरा मोबाइल बताया कि सर मैंने ये सब अनइंस्टॉल कर दिया है. उसने मुझे क्लियरली बोला कि सर अगर मैं उस वक्त ये 6 महीना अगर फोकस करता तो थिंग्स हैव कुड बीन डिफरेंट. आई कुड हैव बीन चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई कुड हैव बीन वर्किंग फॉर अ गुड कंपनी एज ऑफ नाउ, बट आई एम फेसिंग एन अटेम्प्ट एंड नाउ आई हैव टू अगेन रीस्टार्ट. Many of my friends sitting over here might be appearing for the first time, might be appearing for the second time or third time, I don't know. But honestly speaking, it's really, to be very honest, as our friends, you are our students, it's really painful when we see this. But honestly speaking, वो सारी किताबें फिर से खोलना, फिर से पढ़ना, फिर से समझना, ये सब मज़ा नहीं आता. I would recommend, please don't let that happen now onwards with you. एग्जाम अगर 25 दिन डिले हुई है बिकॉज ऑफ इलेक्शंस, कैपिटलाइज द 25 डेज. वरना हमेशा ऐसा लगता है कि सर 15 दिन और मिल जाते शायद मैं पास हो जाता. तो ये 15 दिन मिले हैं आपको. दिस आर रियल क्रूशियल गोल्डन 15 डेज. व्हाट आई वुड बिलीव इज फ्रेंड्स, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं स्टूडेंट्स को एक ही कहता हूं कि प्लानिंग करो. मेक अ शेड्यूल, मेक अ टाइम टेबल, मेक योर वे कि आप कैसे पढ़ोगे. ये दिनों में ये सब्जेक्ट होगा, ये दिन में ये सब्जेक्ट होगा, ये दिन में ये सब्जेक्ट होगा. प्लीज प्लान करो. अनप्लान्ड थिंग्स डू नॉट वर्क. एंड व्हेन यू आर टेकिंग सच अ प्लेथोरा ऑफ कोर्सेस, आप सब्जेक्ट तो देखो, हर एक सब्जेक्ट कितना से लॉट ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व. DT amendments, you can understand 5-6 hours of lecturing yesterday, 5-6 hours of lecturing today, 12 घंटे. So friends, amendments are so much, so what would be the real course? And what time it's required for you to capitalize it? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं आप व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर दो, फेसबुक को बंद कर दो, नहीं. लुक एट इट, बट एवरी डे इन द इवनिंग 10 मिनट्स, जस्ट इट. पूरे दिन में 5-10 मिनट देख लिया, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट हो ठीक है, अदरवाइज फॉरगेट इट. फॉरवर्ड्स आते रहेंगे, जाते रहेंगे. इट्स यूजलेस. व्हाट इंपॉर्टेंट विथ यू इज योर करियर. यू शुड हैव द स्पिरिट कि नहीं यार, अब मुझे अपने नाम के आगे सीए लगवाना है. और कुछ स्टूडेंट्स जो हमारे सीए हैं उनको तो मैं ये कहता हूँ, सीए शुड नॉट बी अ फुल स्टॉप, इट शुड बी अ कॉमा. मतलब इसके बाद कुछ और तो होना ही चाहिए. नाउ डेज ओनली सीए डज नॉट वर्क. यू नीड टू डू मेनी थिंग्स. MBA है, CS है, CFA, बहुत सारी चीज़ें. बट फर्स्ट ऑफ ऑल गेट द बेसिक डिग्री. वो नहीं हुआ तो फिर देखा जाएगा. सीए तो है. सो फ्रेंड्स, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट. यू ऑल आर आवर स्टूडेंट्स, यू ऑल हैव स्टडीड, एंड बिलीव मी, अगर आप फाइनल CA में आए हो, एक चीज याद रखना, यू हैव द करेज टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. अदरवाइज यू कैन नॉट बी इन फाइनल CA. फाइनल CA में आए हो, यू हैव द करेज, यू कैन बी अ CA. यू कैन हैव द नेम CA in front of you, but with one condition, you should give that dedication and sincerity. ऐसा सोचो, ये 3 months are the golden months where you have to learn everything to the fullest extent possible. शायद 2 चीजें अपने को ज्यादा जानने को मिलेगी, और ये 2 चीजें ऐसी जानने को मिलेगी अपने को जो से मेरा पूरा करियर बना देगी. सो थिंक इन दैट वे पॉजिटिवली, बट स्टार्ट गिविंग एफर्ट्स. लोगों का देखोगे, सोचोगे, अपने से रूटीन फिनोमेना में रहोगे. बाहर किसी मूवी का ट्रेलर आया है, आप अपने रूम में पढ़ रहे हो, ट्रेलर देखने आए, फॉरगेट इट. दे आर डूइंग देयर जॉब.
We have to do our job. Yesterday only, there were some friends who had decided to have some kind of get together. Today is Shivratri. So many of my friends have got holidays at their offices. So कल इवनिंग में उन्होंने कहा कि सर, उन्होंने मुझे कहा कि let us have some program and let us have a get together. I said no to them. Why? Because I knew that tomorrow in the morning at 8 o'clock I have to be in front of 200 students and I have to deliver a lecture. So I need to have a peace of mind. घूमना मुझे भी अच्छा लगता है, फ्रेंड्स मेरे भी है, we can roam around. अभी तो मुझे ऐसा कोई टेंशन भी नहीं है. But why I dedicated myself? No. कल मैं फिर से एक बार, to be very honest, मैं पूरा बजट 13 का बुक फिर से एक बार मैंने पढ़ा. Let me read it again. It's a CA final students. We are standing in front of them. So you have to be very clear and very cautious. And this is what I did. I read it twice. And then, despite of the fact I knew the entire amendments, फिर से पढ़ लिया. ठीक है. तो एक डेडिकेशन है कि नहीं यार ये करना है. ऐसा कोई प्रेशर भी नहीं है. So the same thing should be cultivated in you also, friends. If you do it, believe me, success is yours. Nothing else. एक बार बस खाली आराम से सोचना है इस बात को. Just spend some time with yourself. Plan it out and work it. Results going to come. Whether you are appearing for the first time, second time, third time, does not matter. But brilliant results are going to come up. Believe me. आपने सोचा नहीं था कि शायद मेरा रैंक आएगा, लेकिन अब आएगा. ऐसा भी हो सकता है. You cannot underestimate yourself. Don't underestimate. Somebody is brilliant. It does not mean that you are not brilliant. You are. मेरे पूरे करियर में, मैं आपको फ्रैंक बताता हूँ, मेरे पूरे करियर में आज तक मेरा कभी भी रैंक नहीं आया. Never ever got any kind of rank or merit or gold medal. But I have a sigh of relief कि मैंने सब कुछ फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर किया है. तो मैं मेहनत करता था, ठीक है, रैंक नहीं आया, उस बात का इतना अफसोस नहीं है, बिकॉज जितना मैंने किया मेरे सेटिस्फेक्शन के हिसाब से है, और मैं आगे जो भी कर रहा हूँ वो अपने सेटिस्फेक्शन के हिसाब से है. डोंट ट्राई कि नहीं यार लाना ही है रैंक, पास होना ही है, ऐसा मत सोचो. अटेम्प्ट दो, गिव द अटेम्प्ट एंड रिजल्ट्स विल बी योर्स. सो लिविंग यू ऑल विद एन assurance from my end, assurance from your end, that you will give more than 100%. Yes or no? Please, please dedicate. Look at your parents, look at yourself. You have to work. You have to derive results. एक बार ये आ गया फिर शांति है. फिर कॉमा में कुछ लगाओगे नहीं लगाओगे वो दूसरी बात है, लेकिन एक बार के लिए ये डिग्री ले लो, खत्म करो. यार तुमने कितने साल इन्वेस्ट किए, कितने साल इन्वेस्ट हुए? Your crucial 5 years of your life, golden period of your life. वो कहते हैं कॉलेज का 5 साल बेस्ट होता है. कहाँ देखा है सर कॉलेज? सर मालूम ही नहीं है सर, नौकर के क्लास में आते थे जाते थे, दैट्स इट. सुबह 10 से रात को 8 बजे तक, या सुबह 7 से लेके रात को 9 बजे तक, एज द केस में, ऑफिस एंड दिस. प्लीज देन रिस्पेक्ट दैट टाइम विच यू हैव वेस्टेड. Capitalize it, get the degree. It's not wastage, it's a degree getting time which we have invested. Right, friends? Great. So that's it from my end. Now, probably I have just 5 minutes left from my concluding of the session. So what I would request is, those students who have queries and questions, they can come over here. They can come one-to-one with me and have their doubts and questions. Those who want to leave can have break, can have water, tea, coffee, etc. They can just go and have that particular time. Wishing you all the very best. Thank you very much, friends.